कि कला और संस्कृति और सिनेमा के विषय में बड़े काम के लिए होते हैं, सरकार के लिए भी, या जो आज हम कर रहे हैं ऐसे कई इनके आर्टिकल्स हैं, अगर उसको भी फॉलो करें तो मुझे लगता है सरकार के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। हमारे बीच है श्री नीला माधव पांडा जी, पद्मश्री है नीला माधव पांडा जी, और आई एम कलाम और ऐसी कई सारी फिल्में जो है कालजयी फिल्में बनाई हैं, मूलतः उड़ीसा से है, और एक अलग तरह की सिनेमा और एक उड़ीसा की सिनेमा को भी एक तरह से रिवाइव करने में नीला माधव पांडा जी का बहुत योगदान है। हमारे बीच है श्री अशोक राणे जी। अशोक राणे जी जो है अगेन बहुत जाने माने फिल्म क्रिटिक है, पत्रकार है, और इनको भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है फिल्म के ऊपर जो इनके लेखन के लिए। अशोक जी कई बार नेशनल फिल्म अवार्ड के जूरी में भी रहे हैं, मेरे भी वरिष्ठ रहे हैं वहाँ पर। और अशोक जी जो है, जो कान फिल्म फेस्टिवल होता है, कई महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कई बार जितने भी विदेश में जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे बीच है अरुणा राजे जी, अरुणा राजे पाटिल। अरुणा राजे जी जो है FTI से फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे से हैं, और पहली मेरे ख्याल से महिला तकनीशियन है। ये एक बहुत गर्व की बात है। हम लोग एक्ट्रेस तो देखते लेकिन टेक्नीशियन जो है ये हमारे लिए बीच में है, और एक लेडी टेक्नीशियन की भी एक अलग, एक मुझे लगता है एक लेडी डायरेक्टर होना, एक लेडी सिनेमाटोग्राफर होना एक अपने आप में बड़ी यूनिक चीज़ है। और मैं अब और समय नहीं लूँगा, मैं चाहता हूँ अरुणा जी मैम आप इस बात आगे बढ़ाएं और फिर आप सेशन को कंटिन्यू करें। जी थैंक यू मैम। Discussion, last but not the least, all the cinema lovers and citizens who want to see India's soft power grow. And the topic, as you're aware, is Indian cinema as a vehicle for spreading awareness about India abroad. Now, I want to actually create a little background of what do we talk when we say Indian cinema, what are we actually meaning about Indian cinema? And create a context so that we can actually see when the panelists speak, they are really looking at how can we make that big difference that we are looking to make. And I know you might have heard most of the things I'm going to say, but bear with me, and I will reiterate like a reminder that this is what we are talking about. Like if you talk to any common man in India, he will be knowing more about America than any other country in the world. Urban India, especially, has been hugely influenced by the American way of life, their lifestyle, values, and America is not actually as what we believe yet. There's an image that the Americans as a people have created as a country, and what it stands for, though in recent years I would say it has taken a little beating since the war started. Now, people at large believe that Americans as a people are open, democratic, caring for human values, justice. They're also family-oriented, scientific temper. They're world way ahead in exploring the galaxies. And the country is seen as a land of opportunities and national spirit. America loves to live king size, be entertained and entertain and so on. And though they don't have much culture to talk about, as the history is so limited, they have created such powerful images of themselves that countries want to befriend them and be like them. And all this mostly through cinema over decades and decades and decades of storytelling. Their distribution system was also so powerful that their films reached almost all parts of the world. The only English cinema we knew growing up was American cinema. We didn't know any other cinema. Coming to India, let's look at where we stand. Well, what were we known for initially? Land of snake charmers, tigers, rajas, maharajas. When I traveled to the United States in the 80s, I was still asked by the Americans, some Americans, whether we lived on trees. This is 80s I'm talking about. And whether tigers roamed the street. And this was not some interiors, but in Manhattan. New York mein mujhe pucha gaya. At the same time, there was a Russian taxi driver who sang a Raj Kapoor song for me in New York. Then, of course, 60s, 70s, aap dekhenge, there was yoga, spirituality, Kama Sutra, a bit about our music thanks to the Beatles and Ravi Shankar. And more than 6 decades ago, Indian cinema was extremely popular in countries like Africa, Middle East, Eastern Europe, Russia, and South Asia, and so on. Our stars were mobbed.
They're even mobbed today, but there's a big difference. And it was not just the Indian diaspora, but people from those countries who didn't understand our language who saw our films. Today, what we call Bollywood films are watched mainly by Indian diaspora, which has grown in large numbers with the exception of few. Now, Indian cinema is very hard to define. I think most people will agree with me. It's very difficult to pinpoint Indian cinema. Cinema, the term Bollywood, that's the first thing I want to talk about, was initially meant for the Hindi masala cinema, but its misuse has led to it being recognized as Indian cinema for most people. Coming to the films we make over 2,000 plus, the commercial potboilers, which are the masala films, we call them, with stars, songs, action, often with no story or a thin thread, mostly lacking in logic and authenticity. Then there are the serious art house films, which go to prestigious festivals. The former bring in big revenue, while the latter bring in awards and recognition. A nation's power is judged, as you know, not only by economy, military strength, and geopolitics, but its culture, art, literature, food, fashion, films. Now, cinema plays a very, very significant role in connecting people of different countries, cultures, faiths, by sharing their stories of happiness and sadness, love and loss, struggles and victories, survival, growing up, every kind of human story arousing the deepest feelings through human emotions that resonate. And I want to really emphasize on the word resonate. It's almost magical that at the end of a film, people can be touched, moved, and inspired with a new affinity, a new love and respect, not only for the people who made that film, but the country it came from. As a country, we have so much going for us, but we have not been able to communicate and convert it into soft power, and that is why we are here today. Of course, I will desist calling it Bollywood cinema, though it has become a worldwide brand now, but it really needs to really pull up its socks and see who are we and where are we going. Of the 200 to 300 Bollywood films made every year, can you believe it, only 5% make the cut? Only 5% are really successful. This is very shocking. Even our own people are not seeing our films. What about the world? I'll tell you, take you back a little bit again. During the British, we were looked upon like lesser people. And at the dawn of independence, we were a third world country, developing nation. And all our achievements, glorious history as a nation, and people by then had been quite nullified. Gandhi, with his ideology of non-violence, stood tall in the world, but that was then. Can you believe it? When Raju Hirani's film, Lage Raho Munna Bhai, was released, there were a lot of youngsters who didn't know who Gandhi was. I was so shocked. I mean, people had such short memory. At this point, I'd also like to mention another film, Mother India. I don't know how many people are aware of this, but the title of the film, according to a Wikipedia writer, was chosen to counter American author Catherine Mayo's book, 1927 book on Mother India, called Mother India, which vilified Indian culture. Now, Mother India metaphorically represented India as a nation in the aftermath of its independence in 1947, with a strong sense of Indian nationalism and nation building. There are lots of allusions to Hindu mythology in the film, and the character has been metonymic representation of Indian woman who reflects high moral values and the concept of what it means to be a mother to society through self-sacrifice. You know, when the then government was worried, is Mehboob Khan making a film on that Catherine Mayo's book? So actually, Mehboob Khan wrote back and said, no, I am not making it on the book. In fact, I'm anti that. I'm challenging the book. And I want my film to evict from the minds of people the horrible, scurrilous things that Miss Mayo has written. And of course, Mother India was dubbed in many languages. See, it was quite popular at that time to dub it in European languages like Spanish, French, and Russian. Now we think only now we are doing it in Tamil, Telugu, Hindi films being dubbed and, and so on. But they had done it in the European languages then, and it did very well in Greece, Spain, Russia, the Eastern Bloc countries, Latin American countries, Peru, Bolivia, Ecuador,
and all of the Arab world. Of course, it didn't do well in UK and US, but it also got a lot of awards and accolades, including one for Nargis, Best Actress at Kaloi. And it was one of the 3 Indian films nominated for Oscars in so many years. Now, India is considered exotic. Why? Nature, wildlife, heritage sites, and real place where tourists should flock. But Hindi cinema, what they did with the coming of color, was not interested in showing India. The top filmmakers were going abroad to shoot their songs. There was no sense of having a national image or what do we want to project in our movies. It was about catering to the domestic crowd. There were no characters that one could identify with. There was not much of a story either. It was pure escapist fare with star power, and many succeeded and did well, and many did not. But most of those films, as I said, crashed. No wonder no one took us seriously as far as the cinema is concerned. It was much later when parallel cinema and art house cinema developed and showed that India could stand amongst whatever was counted as the best amongst them. This was about cinema. What about our image as people and nation? Today, filmmakers, having realized that you can tell stories well and be crowd pullers without indulging in the mixed masala fare, there is an attempt to make better cinema. I will say that. To focus on storytelling and characters and show genuine emotions. An example is Dangal, where a major star did not do a normal star appearance and played a character. And the film was a winner. It's hugely popular in China and one of the highest grossers, you all know that. And it was not limited to Indian diaspora, which was very minimal in China. The so-called masala popular cinema, which is a mishmash of many genres, is based on a business model. The main goal being great box office returns. They don't claim anything else other than we want to do business and we're making films to achieve business. Simple. It stands for entertainment, catering to what might please and entertain the largest audiences. The distribution setup is large, 2,000 theaters, 4,000 theaters, screens, and brings in huge revenues when it succeeds. Big blockbusters from the South also stand for entertainment, but the storytelling is much stronger. And technically, I think they are a little superior. The art house of festival circuit cinema is made with limited resources and is aimed at expressing cinematic art, or maybe just good storytelling, or maybe something experiential for you. These films win major awards, but have limited releases, not only in India, but elsewhere also. There are no language dubbing, no versions, nothing. And between the two extremes, there are independent films. Earlier it was called the middle road cinema, middle of the path cinema, whatever. And they tell stories to the best of their ability to share the highs and lows of the lives of human beings. Finally, what are films about? About human beings and life. Even if you make a science fiction or a fantasy film or even a cartoon film, it is still about human characters and human life. Today, thankfully, OTT platforms are showing the films globally and they are being noticed. The latter kind of films believe engagement is also entertainment. Now, engagement is not just song, dance, drama, and all that. Engaging somebody in a conversation, in a film, in a story is also entertainment. And they don't need factors like song, dance, comedy, etc. to make the films watchable. And these are the newer kind of films people are making. And the other thing is, in our country, until the OTT platforms came, people from all over India, from different states, did not have access to regional cinema. Outside the states they were in, so we were not even seeing what the rest of India is making. What was available was on Doordarshan once a week and some movies on satellite. Our own perception about our own people from different regions have begun to change. If you notice, what you thought about the Northeast has changed. What you thought about the South has changed. So much thanks to the OTT platforms, which are, actually showing these films. India produces the largest number of films in the world, but not a single film has won an Oscar in 100 years, over 100 years. In comparison, 27 countries have received the Best Foreign Film Award, including Iran, Chile, and Ivory Coast too. Not that we need, a pat on the back or endorsement from the Academy in the US, but the whole world watches Oscar films. All of us watch the Oscar films to see what is that, why are they so good.
And we are perfectly capable of telling stories that make one cry, laugh, or consider what your life is about, because basically we are a country of storytellers, but we don't tell stories. We've forgotten to tell stories. Of course, filmmakers have a lot of excuses. Wrong entries are chosen for festivals. Yeah. And our content doesn't work for global audience. Domestic market is big enough. We don't need them. Jury is biased and all of that. Then how come a film like Parasite can walk away with the kind of global eyeballs and awards? How come Patar Panchali from 1955, Mother India from 1957 are still topping the best list? I'm going to just wind up in a minute. The perception of Indian cinema is about color, culture, song, dance, action, all expressed in grandeur and scale. For them, it is still larger than life characters, and nothing wrong with that. Why I'm sharing this is that films that truly represent India or its ethos may never make it to the shows if they are not considered to have box office potential. I believe that there is potential for every kind of film if marketed right. According to me, it is not one India we live in. There are many Indias, and the richness of our culture, diversity, language, literature is not present in most of our cinema. Our ethos, our humanity, our spirituality, our heritage, our wisdom, all that is missing. Now, the question is, how can we use cinema as a soft power? The last thing about the Hollywood guys, what have they done? They are in alignment with geopolitics. The Hollywood filmmakers are in alignment with geopolitics. They create the narrative and we buy it. Hollywood clearly pushes its government and establishes narrative forward, and the American government pays incentives and other benefits to its movie makers because they are pushing the American narrative and amplify American soft power. Indian film industry cannot blame the government because it has failed to push the Indian narrative. On the other hand, the government can do a lot to empower filmmakers, especially independent filmmakers who have limited resources. Create policies, funding for a kind of cinema that will enhance India's soft power and change the narrative. The latest I heard this morning, just before I left, from a reliable Bollywood source, is that Doctor Strange, the Hollywood film, is not released yet, has already got an advance opening of 25 crores. Can you believe it? Hollywood, which makes less films than us, makes 50 times more revenue than us. So I'm now going to open it to the panel to take this forward. What can we do to really use cinema as a soft power? Yeah, Shrupaji, please come. गुड आफ्टरनून। आप सब तो यहाँ मराठी बोल रहे हैं, मैं भी बांग्ला में बोलूँगी। आज अक्षय तृतीया, सबाई भालो थाकबेन। ठीक है, हमको मराठी समझ में नहीं आती है, आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी बड़ी उम्र में अगर हिंदी सीखने की कोशिश की, और ये अभिमानी जी बैठे हैं, वो कुरुक्षेत्र मुझे करके मुझे कितना तंग किया करते थे। रात को 4 बजे तक डबिंग कराने में मैंने मदद की कि नहीं? हाँ, मैं अच्छी स्टूडेंट थी कि नहीं? हाँ, बताना पड़ेगा ना आपको। हाँ, मैं अच्छी स्टूडेंट थी, मैं आज भी अच्छी स्टूडेंट हूँ। बहुत दिन हो गया मैं फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल अपने आप को दूर कर लिया। मैंने ही चुना था, दूर जाना था। जानबूझ के मैंने 2014 के करीबन 14 में डिसाइड किए थे कि मैं थोड़ी सी नाराज़ थी कुछ विषय पर, तो उसको बदलना अगर होगा तो खुद ही बदलना होगा और मैदान में उतर के ही बदलना होगा। तो इसलिए डिसीजन मेरा वेल थॉट आउट था, कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मैंने सारे फिल्म में अपने सारे जो कमिटमेंट थे वो सब ख़त्म कर लिए थे इन 2014, by end of 2014 and 2015 I my work sphere मैंने चेंज कर लिया है। अभी ये जो आज का जो टॉपिक है, इंडियन सिनेमा एज अ व्हीकल फॉर स्प्रेडिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया अब्रॉड, इसको मैं 3 विषय में
भाग करना चाहती हूँ 3 विषय में। मैं थोड़ी थोड़ी बांग्ला मिला मिला के बोलूँगी, प्लीज़ सह लेना मेरे साथ। 3 विषय में, एक तो एज अ पार्ट ऑफ द सिनेमा फ्रेटर्निटी, एक है मेरा चाइल्डहुड कैसा रहा। मेरे चाइल्डहुड के ऊपर डिपेंड करता है कि फिल्म मेरे ऊपर कैसा असर डाला। हम लोग के लिए फिल्म देखना परिवार में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता था। अरे परिवार में सारे लोग 12 लोग साथ जो खाना बनाते थे उनको भी साथ लेकर हम फिल्म देखने जाते थे। तो ये हमारा स्टाइल था जिस घर में मैं बड़ी हुई हूँ। और हम उद्वास्तु परिवार के हैं तो घर बार बोल के कुछ होता ही नहीं था। बांग्लादेश के अनडिवाइडेड बांग्लादेश उस ज़माने में मेरे पिता माता आए हुए थे, तो अजीब किस्म की ज़िंदगी थी। फिल्म बाप रे बाप, अरे बाप रे ये लोग कौन लोग हैं, ऐसा करके हम लोग देखते थे। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी कि कैसे फिल्म मेरे ऊपर असर डाला और मेरे जैसे बहुत लोगों पर मुझे लगता है ये असर डाला है। एंड लेटर ऑन आई हैव लर्न्ड टू सी द होल थिंग फ्रॉम अ पॉलिसी मेकर्स पर्सपेक्टिव and be having a nature of always looking for a solution. I wish to come up with certain ideas. I don't know ये कितना लाभप्रद होगा, किसी के लिए फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा। देखिए जो फॉरगॉटन हीरो श्याम बेनेगल जी ने बनाए थे, कई सालों बाद गुमनामी बना सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। अच्छा क्यों हम स्वामी विवेकानंद जी को लेकर फिल्म नहीं बनाते? शकुंतला देवी फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा हमारे देश में, बहुत खास लगा। अच्छा बॉडी डोनेशन के बारे में कुछ हुए पुराने और भी तो हो सकते हैं, क्योंकि आज तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारे देश में, तो ये प्रोसेस और भी आसान हो गया है। तो किस तरह से इसके विषय में हम फिल्म बना सकते हैं? अगर यहाँ कोई है और मेरी बात अगर कोई फिल्म मेकर तक पहुँचाई जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। ये डॉक्टर फ्रेटर्निटी जो कोविड युद्ध में हम लोग को कैसे बचाया है। हमारे ही एक पैनलिस्ट यहाँ पे है, शायद कल बोलेंगे, बालाजी बोल के, उन्होंने साइलेंस पर एक ये बनाए हैं, शूट किए हैं। मैं पढ़ रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। उस पर ज़रूर वो एक फिल्म बनाएंगे, मैं तो वेट कर रही हूँ। बायोग्राफिकल मूवीज़ बननी चाहिए। हमारे देश के कल्चर इतना रिच हेरिटेज, नॉवेल्स, लिटरेचर, इस पर जब फिल्म बने, रीजनल फिल्म ज़्यादा बने, तब हमारे देश का नाम और हमारे लिटरेचर का और हमारा गौरव विश्व में, देश में भी साबित हुआ है, स्थापित हुआ है। बचपन से जब सुनती थी, हम दक्षिणेश्वर महाकाली की भक्त हैं, हमको लगता था ये शक्तिपीठ 51 है, 51, क्यों हम ऐसे इनके पीछे के स्टोरीज के बारे में फिल्म नहीं बनाते? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? या 12 ज्योतिर्लिंग, क्यों नहीं हम अच्छे से इनके इतिहास के कुरेदते हैं, जानते हैं कैसे बना था। लोक कथा है, कुछ लोक कथा मिलेंगे हमको, कुछ लिखित तो पूरा मिलेगा नहीं, लेकिन वही एक फिल्म का मटेरियल बहुत खास हो सकता है। क्यों नहीं हम कर सकते? हमारे देश में जंगल, पहाड़, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज सब है, लेकिन उसको हम इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा उसको स्टाइलाइज बना दिए थे, उसका खूबसूरती हमारा चला गया। क्योंकि हम ज़्यादातर, कुछ विदेश हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ दिया जाता है और वहाँ की जगह बहुत खूबसूरत हैं देखने में, तो वहाँ हम शूटिंग करने के लिए ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्म्स चले जाते थे। हमारे देश को स्वच्छ करने के लिए मोदी जी को आना ज़रूरत पड़ा। खैर मैं बिल्कुल उस पर नहीं जा रही हूँ। तो हम अभी स्वच्छ भारत बना रहे हैं, तो हम अभी हमारे देश में ही अच्छी जगह मिल जाएंगे हमको शूटिंग करने के लिए। अनडिवाइडेड बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर अगर किसी के मन में फिल्म बनाने की कोई मनसा जागता है तो प्लीज़ मुझे बोलिए, मैं बहुत इनपुट्स डाल सकती हूँ। मेरे परिवार में हमने देखा है, जाना है किस तरह से हम बेघर, घर नहीं रहने से, अपना गांव, अपना ज़मीन न रहने से कैसा अनुभव होता है, वो मैंने बचपन से देखा।
मतलब इतनी सी थी मैं, इतनी सी, मतलब 5 साल की उम्र की, तब से मेरे मन में, वाई आई वॉन्टेड टू बी एन आर्किटेक्ट. I always wanted to be an architect, ma'am, because I knew that making a house, having a house is how important that can be for a family, for a mother. तो हम मेरी ज़िंदगी तो माइनस से शुरू हुआ. तो पहला काम मेरा बना कि कुछ नहीं करूँ, बस अपने पिता माता के लिए घर तो खरीद के दूँ. तो जिस दिन मैंने महाभारत में काम किया और पहला चेक, मतलब हम लोग बहुत कम मिलते थे हम लोग को उस वक्त, लेकिन वो पैसा भी बहुत उस वक्त महत्व ज़्यादा था. जब भी पैसा जमा के इकट्ठा किया, पहला घर खरीदा. वो घर खरीदते गए और आर्किटेक्ट बनने का शौक था, वो तो बन नहीं पाए, तो घर बनाते गए, रिपेयर एंड स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग करते गए. या इतिहास को हम भूल नहीं सकते. हमारे वेद, उपनिषद, शास्त्र, भारतीय परंपरा के ऊपर अगर फिल्म बनाए तो देश तक हम पहुंचा सकते हैं. अपने भारत को विश्व के पटल पर कहीं ऊंचाई तक ले जा सकते हैं. हम ऐसा नहीं कह रहे कि भारत ऊंचाई तक नहीं पहुंचा है, लेकिन और ऊंचाई क्यों नहीं. अच्छा, हमने क्या क्या देखा अभी तक ज्यादातर फिल्मों में. अच्छे फिल्मों के बारे में भी बोलूंगी, लेकिन ज्यादातर मैं जैसे बोल रही थी ना, बच्ची थी तो क्या असर पड़ा था. स्कूल में देखना, हर स्टूडेंट जब टीचर बोलते हैं ना क्या बनना चाहते हो, तो मोस्ट ऑफ द 90% स्टूडेंट तो बोलेगा पुलिस. बोलते हैं कि नहीं, पुलिस बनना चाहते हैं. जनरली हम लोग बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तो यही बोलते थे, पुलिस बनना चाहते हैं. लेकिन हमने फिल्मों में क्या देखा, हर पुलिस खराब है. पुलिस तो मतलब खराब है ही है. इसको कहा जाता है माइंडसेट बनाना. पॉलिटिकल नेता, अरे वाह, 4 गद्दे लगाकर यहां पे बैठेंगे और यहां पे बंदूक निकालेंगे और बड़ी बड़ी आंखें करके कुछ अनाप शनाप बक जाएंगे और मुंह में पान बहुत जरूरी है, आऊं आऊं करके बातें करेंगे. ये पॉलिटिकल नेता है. मतलब पॉलिटिकल नेता का हमने ऐसा मन में गाड़ लिया है कि मैं आपको बताती हूं, मैं जब बॉम्बे में यहां रहती थी, 5-6 साल काम करती थी, थोड़ा पैसा जम जाता था, फिर से पश्चिम बंगाल चली जाती थी, फिर से जेब खाली होता था, फिर से चली आती थी, सीरियल करती थी, फिर से लगता था यार बहुत हो गया, इतना पैसा नहीं चाहिए जीने के लिए, फिर से चली जाती थी पश्चिम बंगाल. लेकिन मैं यहाँ याद है मुझे, इतने सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में हमें जाना होता था, बड़े बड़े इन्विटेशंस आया करते थे. किसी ने बोला आई एम MLA हियर, नमस्ते. अच्छा, आई एम MP ऑफ द सन्स. ओ अच्छा, नमस्ते नमस्ते. मैंने उनके शक्ल की तरफ दोबारा घूम के नहीं देखा. हमें एक तो किसी को याद रखने की जरूरत नहीं कभी पड़ी, और दूसरी बात मुझे लगता था MP MLA सब पॉलिटिशियन लोग कैसे होते हैं, जो फिल्मों में हमने देखे वैसे ही होते होंगे. बड़े लोग और गरीब लोग, हर गरीब अच्छा है और हर बड़ा आदमी बहुत खराब है. एक आध आपको किसी फिल्म में मिल जाएगा जो बड़ा आदमी गाड़ी में आया और अच्छा है, कभी नहीं मिलेगा. ज्यादातर आपको बड़े लोग बहुत खराब दिखेंगे. बिजनेसमैन, अरे बाप रे, तो सबसे सत्यानाश खतरनाक किस्म के लोग हैं, ये हमको मिलेगा. हमेशा एक बात बताऊंगी, प्लीज बुरा नहीं मानना, हमेशा हिंदू घर की लड़कियां मुसलमान घर में शादी करेंगे और उसके बाद हिंदू बड़ा गोड़ा होगा, यार ऐसा कैसा कर रहे हैं, और मुसलमान लोग बड़े एमेंसिपेटेड होंगे. आज दोनों का ही बड़ा बड़ा पर्व है, तो मैं दोनों को साथ लेकर बोल रही हूं. ऐसा कोई मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे देश में. इंडिविजुअली ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने इंडिविजुअली ट्रीट नहीं किया. हम लोगों ने इसको एक रंग दे दिया अलग अलग करके. हर साधु भंड है. देखा किसी साधु को किसी फिल्मों में देखा जो अच्छा है? मैंने तो नहीं देखा, आप लोग देखे होंगे तो बताना. मतलब पश्चिम बंगाल में बोलते हैं साधु भंडो, आरो पीछे और बहुत सारे कुछ बोलते, मैं नहीं बोलूंगी. अरे कैसे, अरे उनके जरिए पूरा मतलब क्या दान ध्यान देना, शिक्षा, ज्ञान, जिंदगी तबाह करके दिए हैं. अपने लिए कुछ नहीं सोचे, एक वस्त्र में घूमते रहते, लेकिन हमने उनको डिमार्क कर दिया एक जगह पे.
स्कूल कॉलेज में जाते बच्चे सिर्फ प्यार करने में, देखा है? कॉलेज में जाओ तो बस बच्चे प्यार करो, और उसमें एक बच्चा जरूर होगा जो चश्मा लगाकर यहां से बैठे रहेगा और पढ़ाई करेगा, और सब उसके पीछे पड़ेंगे, मजाक उड़ाएंगे। मतलब ये क्या हम लोग, मतलब स्कूल कॉलेज जाओ तो बस पढ़ना नहीं है, पढ़ेगा तो उसको बस रैगिंग होगा। मतलब ये दीज आर द सेट थिंग्स विच वाज देयर इन आवर माइंड, इनकलकेटेड। हमारे पंजाबी हमेशा आइदर ट्रक चलाता है नहीं तो बुद्धू है, एकदम बुद्धू है। और बंगाली एकदम पढ़ा लिखा, एकदम कान में ऐसे पेन लगाकर बहुत सीरियस आदमी है, नाक ऐसे चश्मा लेकर ऐसा बैठा रहेगा। बंगाली सब ऐसा ही है, मतलब ये सेट। मैं आ रही थी और क्या क्या कर सकते हम इसके विषय में। हाँ, हम मानते हैं स्लम डॉग मिलियनेयर ऑस्कर मिला है, बाकी सारी फिल्मों को मिलना था लेकिन मिले नहीं है। चलो ठीक है, पहले हम अपना माइंडसेट तैयार करते हैं। ये समवन विद समवन, ये फिल्म हमने करोड़ों देख लिए हैं, फलाना वेड्स फलाना, ये हमारा फिल्म बहुत हम लोगों ने देख लिया। तो इससे एक चीज़ अच्छा हुआ है, हम मानना ही पड़ेगा। हमारे जो कलरफुल ड्रेसेस है, हम जो ज्वेलरीज है, ये सब का बाहर बहुत बड़ा सा प्रभाव पड़ा। विदेश में कहीं पे भी जाओ, अरे इंडियन यू आर वेयरिंग अ लवली साड़ी, दिल से एवरीवेयर, इसका असर ज़रूर पड़ा। लेकिन और भी बहुत सारे असर हम डाल सकते थे। आज ब्राइड्स ऑफ इंडिया देखकर लोग इंडिया से कॉस्ट्यूम्स बनाने के लिए आते हैं शादी में, जो भी वहाँ पे रहते हैं। सॉन्ग एंड डांस हमारा एक बहुत प्रभाव रखा। लंदन बोलिए, नेपल्स, लोकार्नो फेस्टिवल, वॉशिंगटन डीसी, कांस, एवरीवेयर हर फिल्म फेस्टिवल में हम अपने पश्चिम बंगाल के बहुत सारे बंगाली फिल्म को लेकर हमें जाने का मौका मिला है। लोग हमें देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत प्यार जताते हैं। लोकार्नो वी वर वेलकम लाइक एनीथिंग। लेकिन ये भी सच है कि उसके साथ साथ हमारे ऊपर थोड़ा सा करुणा भी करते हैं। अरे इंडिया बहुत गरीब देश है, ये सच है। कुछ समय हमारे मुश्किल से गुजरे हैं। इन्वेशन इंडिया में जो हुआ है, इसके ऊपर हम फिल्म बनाएं तो सच्ची बात लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन ये भी सच है कि सत्यजीत रे को ओपू ट्रियोलॉजी करते वक्त अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े, ये सच है। तुलसी चक्रवर्ती हमारे पश्चिम बंगाल की बहुत नामी एक्टर, उनके बगैर एक जमाना था कोई फिल्म बनता ही नहीं था, मतलब वो एकदम खास थे। जब गुजर गए, सत्कार का पैसा नहीं था। तो एक डिस्पैरिटी है, एक बहुत बड़ा सा डिस्पैरिटी है इन द फिल्म फ्रेटर्निटी सर, मैम, ये सच्चाई है। तो हम इंडियन सिनेमा को टीम इंडिया कैसे देखते हैं? कुछ फिल्मों के नाम मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक शकुंतला देवी, पिंक, वेस्ट बंगाल में शब्द बना था, आबार और बना था, इसमें से एक आध में मैंने काम किया, लेकिन मैंने काम किया इसलिए नहीं नाम बोल रही हूँ मुझे अच्छा लगा इसलिए नाम बोल रही हूँ। सत्यजीत रे का नायक, सुपर 30, जो मैं बस ये आजकल मुझे प्लेन में ही, फ्लाइट में ही थोड़ा देखने को मिलता है। सुपर 30 मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात कैसे असर पड़ता है, अरे तारे जमीन पर, मैं बताऊं, तारे जमीन पर देखने के बाद कई परिवार में ऐसा लगा कि यार बच्चे में थोड़ा सा चेक करें, कुछ ऐसा कुछ अनश्योर, ऐसा कुछ अनसर्टेनिटी बच्चे में दिख तो नहीं रहा है। तो इस तरह से सोशल इश्यूज हमारे में एक जागरूकता भी पैदा करेंगे। और दंगल, MS धोनी, छिछोड़े, चक दे इंडिया, पार, इंग्लिश में इंग्लिश मुझे देखकर इतना अच्छा लगा कि यार सिर्फ इंडियन ऐसा नहीं है कि बंगाली लोग, हम लोग इंडियन ऐसा नहीं है कि हिंदी में थोड़ी सी कमज़ोर है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, हम है कमज़ोर, लेकिन फ्रेंच लोग भी है अंग्रेज़ी में कमज़ोर। तो ये एक मज़ेदार स्टोरी था। एक और चीज़, जैसे पद्मश्री जिन लोगों को मिला है, तुलसी गौड़ा जी, हजबब्बा जी, इन लोगों को लेकर हम फिल्म बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। हमारे कुछ दोस्त लोग हैं यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। एक IITian BHU का 20 साल अमेरिका में रहा,
इंडिया वापस आया, बॉम्बे में रहा और 7-8 साल, सारा बिजनेस को ठीक से रैप अप करके चला गया मिदनापुर, बच्चों को पढ़ा रहा है, इतने सारे बच्चों को गांव में पढ़ा रहे हैं और माता को भी पढ़ा रहे हैं। अच्छी चीज़ बहुत है। सॉल्यूशन करती हूँ बस, और 2 ही मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस है। सॉरी सर सॉल्यूशंस के बगैर प्रॉब्लम डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। कोई राज्य बेनिफिट देता, कोई राज्य बेनिफिट नहीं देता। एक टीम इंडिया सिनेमा कॉर्पस फंड क्यों नहीं बना जा सकता? सब कुछ सरकार अकेला नहीं कर सकता। एक डेटाबेस, सारे फेडरेशंस, आर्टिस्ट फोरम्स, एसोसिएशंस एक जगह पे लाके, एडिटर्स, ग्राफिक्स डिजाइनर्स, थिएटर पर्सनैलिटीज, सबको, मतलब हीरो से स्पॉट बॉय तक, सबको, असिस्टेंट डायरेक्टर तक, किसका क्या सिचुएशन, एक डेटाबेस बनाए, कौन कितने फिल्म कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना काम किए हैं, सबका एक टोटल हमारे इंडिया के फिल्म टीम के सब मिल जाएंगे। किसका क्या सिचुएशन देखकर हम पॉलिसी फ्रेम करने में थोड़ा सा आसान भी हो सकता है। सरकार अलग अलग खाते में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है। लेकिन वो उस तरह से हम उसको प्लानिंग करेंगे तो हो सकता है। एनएफडीसी फिल्म डिवीजन, एनएफडीसी पिछले 20 साल से अच्छे से काम नहीं किए। एनएफडीसी के ज़रिए हम लोगों ने बहुत अच्छे एक्टर्स, अच्छे डायरेक्टर्स हम तैयार किए थे। हमको स्मिता पाटिल मिला, हमको बहुत सारे लोग मिले हैं, और नाम नहीं बढ़ाएंगे, सब लोग जानते हैं। तो सारे एसोसिएशन, स्क्रिप्ट राइटर्स, म्यूजिक कंपोजर्स, सिनेमाटोग्राफी, थिएटर ओनर्स, सबको लेकर क्या हम एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल डिस्पैरिटी को मैच कराने की कोशिश कर सकते? और आखिरी लाइन, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। ये जब विदेश के कोई गोरी अपनी साड़ी पहनकर गाना गाती है, हमको उसको फेसबुक में फॉरवर्ड करने में बड़ा मज़ा आता है। तब हमको कृष्ण भगवान की महत्ता समझ में आती। अगर देश में बात करें तो अजीब व गरीब लोग ऐसे करके देखते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में आज भी। ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। हम लोग विदेश के किसी भी अवार्ड के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत मुझे नहीं महसूस होता है। मुझे लगता है एक दिन ज़रूर आएगा, जिस दिन, और जल्द ही आएगा, जिस दिन हमारा फिल्म फेस्टिवल, हमारा इंडियन फिल्म फेस्टिवल इफ़ी इतना मर्यादा अपने आप में बना लेगा तो लोग विदेश से ढूंढ के पागल होकर आएंगे हमारे देश का अवार्ड मिलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक्टर का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है, और रूपा जी ने आज जिस तरह से अपने ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने रखे, बहुत ही सटीक था। अब मैं हमारे अगले वक्ता नीला माधव पांडा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, और सर बात हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में रखेंगे ताकि प्रश्न बहुत है सर, हम जो है वो उसके लिए हमारे पास समय रहे। थैंक यू सर। नमस्कार। वेल, एक इंडस्ट्री में हम काम करते हैं which is largest in the world, which is economically protected. We are growing every year. I think 2018 में last count was 2023 film we made. But what do we lack? You know, of course, inside the country we are really doing well. It's fantastic. How much we lose, how much we gain, it doesn't matter. At least it is part of this country. But our presence globally, so like Aruna ji said, whether Oscar recognition मिला कि नहीं, ये बात नहीं है। एक देश जहाँ पे हर 100 किलोमीटर पे खाना, कलर, लोग बदल जाते हैं, इसकी क्या है ऐसा इतने सिनेमा बनाने के बावजूद हमारी recognition बाहर क्यों नहीं है? It's not that we have identity crisis to go and ask, see our film. But what exactly the topic is soft power. How do we know America? I'll give you a small example. Half of India, you know, the rich people goes to not any other part of the Europe, but Switzerland, because यस जी ने स्विट्जरलैंड को दिखाया सबसे बेहतरीन देश, सबसे सुंदर देश, हर किसी को स्विट्जरलैंड जाना है. That is soft power. We have sold Switzerland. They should pay us. But inside our country, like one of the very valid point I would say that how much
Indian character we see in our own film. We simply sell entertainment, 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 masala. It's fine. I'm happy with that. I'll tell you, in 2011, I was in Iran, in a small township called Isfahan. And while I was asking an old man, which was 80-year-old man, some address or something, he started singing Ram Teri Ganga Mili Ka Gana. Okay? You know, our song and dance is recognized very well. The way we do, say, Bollywood film, एक लड़का को लड़की के साथ प्यार हो गया तो 30 लड़का लड़की डांस करते हैं, which is very aspirational inside your country, what we understand, what we say, this is what we sell. It's fine. But when it comes to, imagine an industry which is 183 billion Indian rupees value, and we are growing everywhere. So we should never calculate that overseas market means what the NRI is watching our films. No, we should tap to the market, what America has done, showcasing, you know, when the planet is in trouble, suddenly White House में meeting होती है और एक Avenger आके दुनिया बचाता है, as if they were the savior. So there's so much of power in this country has. We made Mahabharata, for example. But ultimately, Peter Brook made Mahabharata in English. Gandhi was made by an outsider. So there's somewhere, probably we need that power in ourselves to bring that back. Of course, there are smaller problems as a filmmaker. I can tell you, you know, if tomorrow I want to shoot in Taj Mahal or India Gate, it's a trouble. Like 3 months you have to follow. Whereas, if Avengers, they want to shoot, they allow NASA, White House, everywhere they can shoot. We still face our own problem, you know, we should figure out our own issues. So when Mission Mangal was shot, they have to create a small set. Why we didn't allow our own space? So I think, which is where, as a filmmaker, I would say, that that power, that leadership, and the talent what we have, that character of India, the day we showcase outside, it's our spirituality, yoga, you know, everything, colors, I think that is the soft power what we are talking about here, you know. And this is a great time what India is having, because after all the fight, during financial depression, COVID, we are thriving as an economy, as a country. And this is where probably through cinema, and we have got great platform like OTTs. See, in smaller film, my first film in 2010, we went and sold in 67 countries. It went to 75 festivals. So even I would tell a tiny territory like Korea or Poland, there were children watching the film. It was not a big film, but at least they get to know India. And it was an aspirational film. So we have to make this country desirable. Everyone wants to come to India. Everyone wants to see India. How we show is our responsibility. It is us. Let's not always say that government did not do this, government is not giving money. No, it is a private industry and we're growing. We're growing every day. So I would say this is a great time to take India forward, and cinema is actually the best way to take India's power, India as soft power forward. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद नीलम माधव जी, आपने इसको बहुत ही कम शब्दों में और बहुत सारी बातें हमारे सामने रखा। मैं अगले अशोक राणे जी से निवेदन करूंगा सर। थैंक यू सर। नमस्ते, हेलो, नमस्ते। 10-15 मिनट में इतनी सारी बातें करना बहुत मुश्किल है। सो मेनी पॉइंट्स आर देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो मेनी इश्यूज, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, 15 मिनट में बात करना। लेकिन कुछ भी यहाँ वहाँ से बातें करके कर लेंगे। एंड बीइंग ए हिस्टोरियन माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ सम पार्ट ऑफ हिस्ट्री, हाउ इंडियन सिनेमा इन्फ्लुएंस अदर पीपल एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। तो थोड़ा सा वो हिस्ट्री हम देख लेंगे, तो बाद में जो हमको करना है अभी इस सेमिनार के जरिए, so we'll get some kind of some I can answer, some solution, I think. So I would like to start with what Aruna ji said in the beginning about that गांधी जी लगे रहो मुन्ना भाई तब जब आई थी, तब जाके नए बच्चों को पता चला कि गांधी कौन है। तो I remember one incident. I was in Berlin Festival in 2003, and a great legend of world cinema, Andre Vaida, was there with his film.
And that year, in 2003 also, he was there with a film on the Second World War. So I was there in press conference, and somebody asked him, Mr. Vaida, how long you European filmmakers are going to make films after films after films on Second World War? So in the press conference, he had 3 young ladies who were actors of that film, and they're like granddaughter to him. They're sitting next to him, and he said, we'll keep making films on Second World, film after film, because we don't want this generation to forget what we went through. The tragedy is they don't know their immediate past. This I heard about Poland, Europe. हमारे यहाँ क्या है? मैं एक कॉलेज में सिखाता हूँ. I don't want to put the name of the college. Reputed college in Mumbai. बड़े highbrow students वहाँ पे आते, मैक्सिमम मराठी बच्चे वहाँ पे आते. And I was talking about naturally cinema सब चल रहा था. तो twice or thrice I mentioned Vijay Tendulkar, and one student got up and said, "Sir, are you talking about Sachin Tendulkar's father?" तो मैं क्या कर सकता हूँ? So this is the reality of our country. We don't know our own country. Again, the small, I'm not boasting myself. First time I went to Berlin, that was in 96. I was 42-year-old man. And I came back. So normally people, they go to any part of the world, they come back and they talk about, oh, कितने अच्छे रास्ते, कितनी अच्छी गाड़ियाँ हैं, टाइम पर आती है. ये सारी चीज़ें लोग बोलते हैं. मैंने मेरे आर्टिकल में लिखा था कि being a 42 तो थोड़ा बुजुर्ग बन गया था, बच्चों को बताने के अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के तौर में मैंने बच्चों को बताया मेरे आर्टिकल में कि बेटा उस देश को जाके बताओ ये देश क्या है. अभी भी ये ताजमहल वाला देश समझते हैं. मेरा एक सिनेमा लेता हूँ, सिर्फ सिनेमा के बारे में बोलूँगा, लिटरेचर के बारे में, थिएटर के बारे में बोलूँगा, तो कितने ऐसे लोग हैं दे डोंट नो. आई गो टू एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई टॉक अबाउट वर्ल्ड सिनेमा एंड दे आर इम्प्रेस्ड, दे आर सरप्राइज्ड. दिस मैन केम फ्रॉम इंडिया and he knows everything about my country, my filmmakers, and I don't know anything about his cinema except Satyajit Ray or somewhere Rajnikant, somewhere Raj Kapoor. That's it. They don't know our cinema. Why? दूसरी जगह ये भी हुआ है कि हमारे फिल्म को लेकर वहाँ पे आप बता रहे हैं ना व्हीकल, तो हमारी फिल्म का इन्फ्लुएंस कितना है, इंडियन फिल्म का इन्फ्लुएंस कितना है. एवरीबडी नोज राज कपूर के ज़माने में रशिया एंड मिडिल यूरोप का जो एरिया था, उसमें बहुत सारे राज कपूर की फिल्में बहुत पॉपुलर थी. फिर यहाँ अभी चाइना में और जापान में रजनीकांत इज़ वेरी पॉपुलर. नाउ शाहरुख खान इज़ वेरी पॉपुलर इन बर्लिन. I go to Berlin every year. So one lady, 3-4 lady came after me running, and then, hey, you know, Shah Rukh Khan is really coming. I said, he's right there in the hotel. Hyatt. Hotel Hyatt is there. And anytime he'll be there on this thing. So then one girl, that lady tells me, this my friend, 3 years back when Shah Rukh Khan was here, he just touched her. And since then, she's not touching anybody. हाथ ऐसा पकड़ के घूम रही है. तो ये भी एक क्रेज़ है, हमारी ये भी एक क्रेज़ है. लेकिन पैसे पर हूँ, अरुणा जी से बात कर रहा था, मैं ऑलवेज सबसे बात करता हूँ कि हमारा ये जो सिनेमा है ये दुनिया भर को मालूम है, लेकिन हमारा जो रियल स्ट्रेंथ है पीपल डोंट नो एक्सेप्ट सत्यजीत राय, एक्सेप्ट समवेयर ऋत्विक घटक. अभी मैं तो आई कीप वॉचिंग फिल्म्स, आई एम वेरी अपडेटेड ऑन सिनेमा व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री. लास्ट वीक आई वाज इन लास्ट 2 years back, 2 weeks back, आई वाज अ chairperson of jury in Kerala, and I saw some 25 beautiful Indian films. So I saw one film called Pebbles, Tamil film. What a film! This is a complete, total cinema. अभी मैंने आपको बोला, nobody has heard about that movie. It is not written anywhere. But so much is written about all Shah Rukh Khan kind of stuff. I'm not against that, like he said. हिंदी सिनेमा जो भी है, जैसा भी है, मसाला है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. पाव भाजी तो सब जगह मिलेगी ना, मेरे को उससे क्या लेना देना है. लेकिन पकवान की बात तो होगी ना. जैसे मैं अंदर आया तो मैं खाना नहीं खा रहा था, कम से कम अमृत तो खा लो. तो अमृत तो खाने की बात होती है, कुछ नहीं अमृत तो खा लो, तो पकवान तो चलेगा. लेकिन ये जो इसमें हमारा जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है, जो हमको सीरियसली लेना है, हमारे गवर्नमेंट को सीरियसली लेना है कि उसको किस तरह से हम लेके जा सकते हैं. अभी ऑस्कर की बात चली. ऑस्कर हमको कभी मिलेगा नहीं, आप लिख लो मेरी तरफ से. नॉट नेक्स्ट 50 years, 500 years, विल नेवर गेट ऑस्कर. वाई? It's not because we are not making that kind of cinema. Because we are putting some member of juries there for selecting Oscar award, Oscar के लिए film. The kind of people we give them, मैंने तो उनको suggest किया था, you at least put people on jury for Oscar film, selecting film for Oscar, कि that guy or that girl, woman, whatever,
दे शुड हैव सीन लास्ट 5 years का बेस्ट फॉरेन फिल्म। कुछ मालूम नहीं व्हाट काइंड ऑफ स्टफ वहाँ जाता है, कैसे जाता है, किसको मालूम ही नहीं। यहाँ के लोग जो हिंदी मराठी फिल्म देखते, तमिल फिल्म देखते, बंगाली फिल्म देखते, उनको जाके आप बिठा देंगे, नहीं वो बहुत बड़ा आदमी है, सेलिब्रिटी है, उसको बिठा दो, क्या फ़ायदा उसका। तो वी ऑलवेज चूज रॉन्ग पीपल टू लीड थिंग्स। अगर ऐसे लोगों के हाथ में दोगे तो क्या होगा। अगर हम शिप चला रहे, कोई कैप्टन अगर नॉलेजेबल नहीं होगा तो डूब जाएंगे ना। यही बात हो रही है, यही बात हो रही है। इसलिए हमको ऑस्कर नहीं मिलेगा। मैं तो अभी आई कैन गिव लिस्ट ऑफ फिल्म्स दे वुड हैव गॉट ऑस्कर लॉन्ग बैक, नहीं मिलेगा हमको, बिकॉज ऐसे लोग बिठाते, वो फिल्म का नाम भी नहीं लेते वहाँ तक, बिकॉज वी डोंट नो द मेरिट, वी डोंट नो। अभी सेल्समैन और इसको सेपरेशन, ही गेट्स बैक टू बैक, ही गेट्स 2 ऑस्कर, ईरानियन फिल्म मेकर, हमको एक भी नहीं मिल रहा है। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा इंडियन फिल्म फेस्टिवल, what we call IFFI, this is the oldest film festival in the Asia, the first one to start in Asia in 1952. We took pride in that. But हमारे बाद में अभी अभी आया हुआ बुसान फेस्टिवल 20-22 साल का है, मैंने जाके देखा है वो फेस्टिवल। देखिए वो फेस्टिवल कैसा, हमारा IFFI कैसा है। Why? Wrong people. हमारे पास है बहुत कुछ है। मैंने बोला ना कि हमारा वो जो ट्रक के पीछे लिखते हैं ना, मेरा देश महान, वो ट्रक के पीछे लिखने के लिए नहीं है भाई साहब। वी एवरीबडी बिलीव यस मेरा देश महान, मुझे मालूम है मेरा देश महान है, मेरा सिनेमा महान है, मेरा थिएटर महान है, मेरा लिटरेचर महान है, लेकिन हम बताएंगे कैसे उसको जाकर, वो पहले मुझे मालूम होना चाहिए ना। I was doing my research in Cinémathèque Française, and there was a young boy was assisting me. He was the only person there in Cinémathèque who knows English. तो मेरे को अटेंड करता था। तो एक दिन वो स्लोली लगा कि सर whenever you have time, I would like to talk to you for 10 minutes. बोला any time, please come. तो बोला कि I saw that one actor from Indian cinema, such a great actor he is, such a great actor he is. तो मैंने बोला नाम मालूम नहीं, फिल्म मालूम नहीं. I have seen many of some half a dozen films बोला, and I am so much in love with that man. तो अभी कौन होगा मैं बोलते बाद में I started describing, then he said yeah, then I said are you talking about Mahmood? Mahmood, what a great actor. He has seen पड़ोसन. भाई पत्थर पंचली तो ग्रेट है, वो बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, लेकिन पड़ोसन के बारे में वहाँ कोई बोल रहा है, पड़ोसन इज द बेस्ट कॉमेडी आई वुड से इन इंडियन सिनेमा. हमने कभी इसको प्रोजेक्ट नहीं किया उस तरह से. अर्नेस्ट लुबिश की टू बी और नॉट टू बी 1941 की फिल्म के बारे में बोलते हैं. वी नो मोस्ट ऑफ द नो व्हाट इज अर्नेस्ट लुबिश एंड टू बी और नॉट टू बी, लेकिन हम पड़ोसन के बारे में नहीं बोलते. देयर आर वेरी गुड कॉमेडीज इन इंडियन सिनेमा, तो हम नहीं बोलते क्योंकि उसके लिए हमको वो मालूम चाहिए, फिर हम मालूम चाहिए, तब जाके बात बनेगी. तो कुछ वहाँ पे गड़बड़ी है, दैट वे टू रिपेयर समवेयर. नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, बहुत कुछ बनेगा और लोगों को पता तक नहीं चलेगा. अभी वहाँ पे इन्फ्लुएंस का एक मज़े मैं वाला इतिहास की बात करूँगा, हिस्ट्री की. अभी कुछ फिल्म जैसे 2001 में एक इजराइल में फिल्म बनी थी डेस्पराडो स्क्वायर. द फिल्म इज़ इंस्पायर्ड एंड बेस्ड ऑन संगम, वही लव ट्रायंगल उसमें है, बट टेक्सचर, सोशल टेक्सचर, इमोटल टेक्सचर इज डिफरेंट देन आवर्स. संगम में जो टेक्सचर है वो टेक्सचर अलग है, लेकिन द कंप्लीट उसमें सारे संगम के गाने बजते रहते हैं. इट इज़ फिल्म विद इन फिल्म जॉनर फिल्म. उसमें वो थिएटर के लोग हैं और उसका जो लोग बच्चे हैं उनके पिताजी की कुछ 10वीं 12वीं करने जा रहे हैं, तो पिताजी सपने में आते हैं, बोलते हैं कि मेरा जो थिएटर बंद पड़ा है सिंगल स्क्रीन, यू मस्ट स्टार्ट दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस व्हाट एवर रिचुअल. सो यू टू स्टार्ट दैट थिएटर एंड दैट थिएटर शुड बी स्टार्टेड बिकॉज लास्ट टाइम मैंने जब बंद किया था तो संगम रन करी थी, तो आप संगम से शुरू कर दीजिए. व्हाट अ फिल्म, आप देखिए 2001 की फिल्म है. मैंने वो स्टुटगार्ट फेस्टिवल में था, वहाँ पे एक नया बच्चा आया था अमेरिका से, एंड ही वाज अ जापानीज गाय, जापानीज यंग मैन, फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, एंड ही मेड अ फिल्म. तो उसमें ऐसा है कि दैट दिस बॉय द प्रोटैगनिस्ट इन फिल्म, ही इज जापानीज, लिव्स इन अमेरिका, एंड ही वांट्स टू बी ए फिल्म मेकर. एंड कहीं पैसे नहीं, कुछ नहीं. उसका एक मामा है, वो भी बूढ़ा है, तो मामा को कभी कभार सिनेमाटोग्राफर होना था, हियर सम कैमरा, तो मामा को बोलते चलो हम फिल्म बनाते हैं. और वो माँ से छिप कर बनाता है. वो घर से निकलता है, वो कि कुरियर बॉय का काम करता है, और घर से बाहर निकल के बाद वो सारे चेंज करके कहीं पे कैमरा रखा, कहीं पे कुछ चीज़ें रखी है, एंड ही स्टार्ट मेकिंग दैट फिल्म. फाइनली ही एंड अप मेकिंग द फिल्म. उसके प्रीमियर को माँ को बुलाता है, तो फिल्म देखती है माँ, फिर माँ के आँख में आंसू आते हैं, टिपिकल इंडियन मेलोड्रामेटिक सीन. और फिर वो माँ को पूछता है कि तुमने आज तक मुझे, मैं बचपन से तक तो जैसे मैंने सिनेमा बोला तो तुमने रोका है, मुँह पे हाथ रख,
सिनेमा तक बोलना नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो फिल्म का जो प्रोटैगनिस्ट है, ही इज़ अ मैड आफ्टर रजनीकांत। तो माँ बोलती है तेरा बाप उसका पागल था और उसने बर्बाद हो गया, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम उसके पीछे मत जाओ। तो इतना इन्फ्लुएंस है रजनीकांत होना, इतना इन्फ्लुएंस, वो बच्चा फिल्म बनाता है। There are so many films I can give example. Like last example I'll give. There's one Chinese film I saw, and the top angle shot in the beginning, and we see a small village and one house, and so many entire villagers gathered around that house, and we go close, and we see there's one young chap, backpacker like a badha, and everybody, all old people, they're speaking something in Chinese we don't understand. There's no subtitle even for that particular scene, no subtitle. Baad mein hai. And there are the murmuring sound, and suddenly we realize from their body language that they are all telling him, don't leave this place, don't leave your family, don't go leave this house and all that. And finally he said, "Nahi, I want to go." And he comes out of that crowd and start walking and immediately start singing, "Mera Juta Hai Japani." और पूरा गाना गा के वो बीजिंग पहुंचता है, जैसे राज साहब श्री 400 पे पहुंचे थे। इतना इन्फ्लुएंस है हमारा, ये भी होता है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि ये इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, ह्यूज सिनेमा, सो मेनी, अब नंबर तो बातें कर रहे हैं, इतने नंबर पे, लेकिन इसमें जाके हमारा रियल सिनेमा क्या है? अभी सिनेमा आप कुछ भी बोलो, कितना लिखो, जितने सेमिनार करो, जिसको धंधा करना है वो धंधा करेगा, जिसको कुछ मन से फिल्म बनानी है, कुछ अच्छा बनाना है, वो भी बनाएगा, तो फिल्में बनती रहेगी। लेकिन हमको एज अ सिस्टम, चाहे वो गवर्नमेंट मशीनरी हो और हम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और जो भी सपोर्टिंग, हमको इस किस्म के सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए, इंडिपेंडेंट सिनेमा को, कि वो जा दैट सिनेमा विल रियली रिप्रेजेंट इंडिया। जो हमारा इंडियननेस है ना, भारतीयत्व जो बोलते हैं ना, वो वहाँ पे है। भारतीयत्व का जो मतलब है वो मैं बहुत वास्ट में इस बोल रहा हूँ, वास्ट कॉन्सेप्ट भारतीयत्व, इंडियननेस, उसको लेके वो बात कर सकते कि ये ऐसा क्यों है। ऐसे कि अभी मैंने कान में मसान देखी थी, कान में लंच बॉक्स देखी थी, 10 मिनट्स स्टैंडिंग ओवेशन फॉर बोथ द फिल्म। आई वॉज देयर राइट इन द थिएटर। सो पीपल रियली अप्रिशिएट। अभी ये जो मैंने बताई पेबल, दूसरी मैंने एक मलयालम फिल्म देखी थी अभी, जॉयफुल मिस्ट्री। व्हाट अ फिल्म, फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, उसको कौन प्रमोट करेगा? So we should develop, create an organization, some system where we can identify this young filmmaker who really care a lot for what is called Indian cinema. I am not against that. I don't use myself the word Bollywood. I hate that word Bollywood. But for me, Indian cinema, जो Indian cinema में जो Indians है, भारतीय, हम भारतीय लिटरेचर को बोलते हैं क्या बॉलीवुड लिटरेचर? वो तो लिटरेचर है हमारा, भारतीय साहित्य बोलते हैं उसको। भारतीय साहित्य में बंगाली साहित्य, मराठी साहित्य, कन्नड़ साहित्य वो अलग है, लेकिन उनको भारतीय साहित्य बोलते हैं। मुंबई के साहित्य को मुंबई का बॉलीवुड साहित्य नहीं बोलते हम लोग। तो ये जो हमारा रियल साहित्य है, जो रियल नाटक है, जो प्ले है, उसको अगर लेके जाना है तो हमको वी हैव टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, सम सिस्टम, एंड वहाँ पे वी शुड हैव राइट काइंड ऑफ पीपल हु रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंडियन सिनेमा, and then only we can do something like that. Sorry, मैं बहुत थोड़ा यहाँ वहाँ से बोलता रहा कि ये बहुत बड़ी, मैंने शुरू में बोला था कि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कुछ एक पूरा दिन बोल सकता हूँ, इतना कुछ इसमें बोलने लायक है। लेकिन ये अगर हमको डेफिनेटली करना है तो इसके लिए यही एक मेथड है, मुझे लग रहा है कि वी शुड रियली वर्क हार्ड। एंड देन अभी एक लास्ट एग्जांपल मैं दो के रुकूंगा, व्हाई आई ऑलवेज last 15 minutes saying कि right people at right place. Some years back somebody called me and he said कि सर आप अशोक राणे? बोला हाँ। तो बोला पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने बोला भाई पहली बार फ़ोन कर माफ़ी क्यों मांगते हो? तो बोला माफ़ी इसके लिए मांगता हूँ कि मुझे कहीं से पता चला यू आर अशोक राणे हो, आप बहुत बड़े अशोक राणे हैं, आप ये वो। अच्छा ठीक है बेटा, आगे बोलो क्या काम है? तो बोला कि नहीं, मुझे सेंसर बोर्ड पे मुझे अपॉइंट किया गया है और सेंसर पे कैसे काम करना कुछ मालूम नहीं है। तो किसी को मैंने पूछा तो वो आपके दोस्त निकले, वो मेरे भी दोस्त थे, उन्होंने यार अशोक राणे उनसे पूछ लो, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। तो आप मुझे बताइए मुझे सेंसर पे काम कैसे करना है। और बाद में उसने लास्ट लाइन उन्होंने ऐसे बोला कि सर पहली बात तो ये कि मुझे फिल्में देखना ही अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उनको बोला कि फिर एक मेरा पहली सलाह आपको ये कि आप डोंट टेक दिस पोस्ट, आप डोंट गो ऑन सेंसर, आप फिल्में नहीं देखते, आप सेंसर मत जाइए। वो भाई साहब आज भी वहाँ बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद राणे सर। आपका जो
सिनेमा का इतिहास से लेकर सिनेमा का भविष्य तक का आपने जो चित्रण किया यहाँ पे सबके सामने। अब हमारे अंतिम स्पीकर जो है आज के वक्ता है श्री आनंद विजय जी। मैं उनसे निवेदन करूँगा, आनंद विजय जी आप आए और चर्चा को आगे ले जाएं। आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित मित्रों, आज अक्षय तृतीया है और माना जाता है कि इस दिन जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है, या जो उद्देश्य तय किए जाते हैं वो सफल होते हैं। मुझे लगता है कि आईसीसीआर ने बहुत सुरुचिपूर्वक आज इस तिथि का चयन किया होगा कि इस सेमिनार का जो उद्देश्य है वो पूरा हो। इसके लिए मैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी को बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छे दिन पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मुझे जो विषय दिया गया है, मैं थोड़ा अनुशासित हूं, उतने जितना समय है उतने में, और जो विषय है उस पर ही बोलने का प्रयास करूंगा। इंडियन सिनेमा एज ए व्हीकल फॉर स्प्रेडिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया अब्रॉड। बहुत कठिन विषय है और बहुत, अशोक राणे जी ने सही कहा कि बहुत बड़ा विषय है। अगर हम भारतीय फिल्मों के प्रभाव और उसके पर बात करेंगे तो सबसे पहले हमें आइडिया ऑफ इंडिया को डिस्कस करना होगा, क्योंकि मूल में वही आइडिया ऑफ इंडिया है। कौन सा आइडिया ऑफ इंडिया? क्यों आज हमारी फिल्में भटक गई? क्यों आज फिल्मों में इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं जिसको यहाँ खड़े होकर कहना पड़ता है कि हमें कोई 50 साल तक ऑस्कर नहीं मिलेगा? इसके कारण क्या है? इस कारण की तलाश करनी होगी और उस प्रश्न का उत्तर आइडिया ऑफ इंडिया में छिपा है। कौन सा आइडिया ऑफ इंडिया? जो अभी एक प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय हैं, वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बहुत बड़े राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया की एक परिभाषा देते हुए अभी कहा था कुछ दिनों पहले कि माइनॉरिटीज़ को माइनॉरिटीज़ की तरह ट्रीट कीजिए, इंडिविजुअल की तरह ट्रीट मत करिए उसको, या सिविलियन की तरह ट्रीट मत करिए उसको। एक आइडिया ऑफ इंडिया उनका भी है। एक आइडिया ऑफ इंडिया लेफ्ट राइट दक्षिणपंथी वामपंथी वो भी है। एक आइडिया ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी का भी है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि इंडिया का बर्थ बाय एक्सीडेंट हुआ है आइडिया ऑफ इंडिया में, और आगे वो कहते हैं कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ कम्युनिटीज। अब वहां से ही शुरुआत होती है जो गलती हुई, भारत को सांस्कृतिक विविधता का देश बता दिया गया। और हम सब लोग बचपन से पढ़ते रहे हैं कि हम अनेक विविध संस्कृतियों का देश है भारत। ना, गलत पढ़ते रहे। भारत एक संस्कृति का देश है जहां हम विविधता का उत्सव मनाते हैं। हम भाषाई विविधता का उत्सव मनाते हैं, हम जातीय विविधता का उत्सव मनाते हैं, हम तमाम तरह की विविधताओं का उत्सव मनाते हैं। ये भारत है जहां अक्षय तृतीया भी और ईद भी एक ही दिन होता है और हम बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये है आइडिया ऑफ इंडिया। लेकिन इस आइडिया ऑफ इंडिया को अगर जवाहरलाल जी के आइडिया ऑफ इंडिया से देखें तो मनमोहन सिंह जी आके कहते हैं कि इस देश की प्राकृतिक संपदा पे पहला हक माइनॉरिटीज का है। क्या ये संविधान सम्मत बात थी? क्या एक सबसे बड़े संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए व्यक्ति को ये बोलना चाहिए? ये राजनीतिक बातें नहीं है मित्रों, इसका प्रभाव भारतीय सिनेमा पर भी पड़ता है। हम जिस समाज में जी रहे होते हैं उस समाज में हमेशा लोग कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ के लिए, प्रेरणा के लिए ऊपर की ओर देखते हैं। अभी गांधी की बातें हो रही थी कि मुन्ना भाई ने गांधी को लोगों से परिचित करा दिया। मुझे लगता है गांधी से नहीं, थोड़ा सा संशोधन क्षमा सहित करना चाहूँगा, गांधीवाद से परिचय कराया उनका। गांधी को तो अभी तक कम से कम गांधी की इतनी स्थिति है कि लोग नाम जानते हैं उनका, लेकिन उनकी ताकत क्या थी उसको इस फिल्म में बनाया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। आज बहुत शुरू से चले जाइए, दादा साहब फाल्के के ज़माने से या वी शांताराम साहब के ज़माने से चले जाइए, किस तरह की फिल्में देखती थी बिल्कुल याद कर लीजिए क्या बनती थी। सीता हरण, लंका दहन, राम रावण, भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्में बनाई जाती थीं।
और ये सिर्फ हिंदी या मराठी फिल्मों की बात नहीं थी, जिस भारतीय फिल्मों की बात यहाँ से हो रही है वो सारी फिल्में इसी कथानक पर और इसी कथावाचन की प्रविधि से उसका निर्माण होता था। बाद के दिनों में हम लगातार डेविएशन होते चले गए। अब एक पश्चिम से जो विचारधारा आयातित होकर आई और जिसका बहुत सुनियोजित तरीके से हमारे पूरे समाज को प्रभावित किया गया, उसमें स्त्री विमर्श को लेकर बड़ी बड़ी बातें हुई, सिनेमा भी उसमें प्रभावित हुआ। हमारे यहाँ का स्त्री विमर्श क्या है? सावित्री जानती है कि कल सत्यवान मरेगा, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं सत्यवान से ही शादी करूंगी। हमारे यहाँ का स्त्री विमर्श क्या है? कुंती द्रौपदी को बोलती है कि तुम्हें पांचों में बांट लेना पड़ेगा, और पूरा पांडव एक स्त्री के आदेश को मानने के लिए विवश है, क्योंकि स्त्री इतनी सशक्त है उस समय की। जब द्रौपदी ने अपमानित होकर केश खुला छोड़ दिया अपना कि मैं खून से उसको धोऊंगी, पूरी ताकत लगा दी गई कि द्रौपदी के उसको शपथ को पूरा किया जाए। ये स्त्री विमर्श है। लेकिन अब स्त्री विमर्श क्या होता है फिल्मों में? देह विमर्श में तब्दील हो गया, जो भारतीय सिनेमा को बहुत गहरे तक प्रभावित किया। हमने अपनी जड़ों को छोड़ दिया। और आज हम बात करते हैं, अब अभी ऑस्कर की बहुत बातें हो रही थी, मदर इंडिया को ऑस्कर इसलिए नहीं मिला। अरे क्या बात करते हो यार, मैंने अभी कहीं पढ़ा, क्या दिक्कत थी? अगर वो इतनी परेशान थी, पैसे की दिक्कत थी, शादी कर लेती यार उससे जो पैसा देने वाला था। इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? ये उनकी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। ऑस्कर वालों को, विदेशियों को, जो जूरी में मेंबर हैं, उनको आइडिया ऑफ इंडिया समझाने की आवश्यकता है। जब तक वो समझेंगे नहीं, अरे क्या हो गया अगर लड़की को छेड़ दिया तो माँ बेटे को गोली मार देगी, नहीं समझ पाएंगे। वो मदर इंडिया के थीम को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पुरस्कार नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि आइडिया ऑफ इंडिया को जब तक नहीं समझेगी भारतीय फिल्म जगत, RRR क्यों इतनी हिट हुई है, इसको देखे जाने की आवश्यकता है। उसमें भारतीय संस्कृति समूल रूप से उपस्थित है। और एक बात बताता हूं आपको, 2012 में, अब मैं थोड़ा उसके प्रभाव पे आता हूं, थोड़ा ठहर के मैं उस चीज पर भी बात करूंगा जिसके कि किस तरह से भारतीय फिल्मों ने आइडिया ऑफ इंडिया को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया। कश्मीर पर बहुत सारी फिल्में बनी इस देश में, मैं ठहर के आता हूं उस पर, लेकिन मैं प्रभाव की बात बताता हूं। 2012 में विश्व हिंदी सम्मेलन जोहानिसबर्ग में हुआ था। मैं उस सम्मेलन में सम्मिलित था। मॉरिशस के मंत्री चुन्नी राम प्रकाश जी भी वहां आए थे, और उन्होंने कहा कि मॉरिशस में अगर हिंदी बची है तो सिर्फ हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न सीरियल की वजह से बची हुई है। हम उनको ही देखकर अभी तक हिंदी और भारतीय संस्कृति को समझते हैं। ये विवाद का विषय हो सकता है कि सीरियल में किस तरह की संस्कृति दिखाई जाती है, अभी अवसर नहीं है उसका, हम कर लेंगे उस पर बात। 2020 में हमने अपने अखबार के लिए पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है वहाँ के प्रोफेसरों का एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन में जो एक बात निकलकर सामने आई वो ये कि जो भारतीय फिल्में हैं उसको देखकर हम बच्चों को यहाँ की भाषा सिखाते हैं। संध्या सिंह सिंगापुर यूनिवर्सिटी के तमिल और हिंदी विभाग की अध्यक्ष हैं। हम यहाँ तमिल और हिंदी के लिए तलवार निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन विदेश में एक ही विश्वविद्यालय में हिंदी की भी अध्यक्ष और तमिल की अध्यक्ष बनारस की एक संध्या सिंह हैं। ये समझिए, उन्होंने बहुत सम्मेलन में बहुत कायदे की बात की कि जो चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका के साड़ियों का कलर है, उस कलर को देख के हम भारतीय कलर बताते हैं। ये सिनेमा का प्रभाव है कि जब पठन पाठन और अध्ययन में फिल्मों की बात को उदाहरण स्वरूप शिक्षक बताने लगे, वो फिल्मों का प्रभाव है। इसके अलावा अगर हम और आगे बढ़े तो जर्मनी के हैम्बर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भट्ट ने बताया कि जो संवाद की शैली होती है उसको सिखाने के लिए, भारतीय संवाद शैली सिखाने के लिए हम छोटे छोटे टुकड़े डायलॉग्स के निकालते हैं और उसको क्लासरूम में चलाते हैं। ये प्रभाव होता है। अगर हम वैश्विक स्तर पर भारतीय सिनेमा के प्रभाव की बात करें तो अपनी संस्कृति वेकिल टॉपिक में है कि कैसे उसको लेके आगे बढ़े आइडिया ऑफ इंडिया को। तो फैलेसी ऑफ ये है कि आइडिया ऑफ इंडिया पर हमारे यहाँ कोई एक मत नहीं रहा। मैं
अशोक राणे जी से बहुत विनम्रतापूर्वक असहमत हूं इस बात को लेकर कि किस वजह से नहीं मिलेगा और आगे 50 साल भी नहीं मिलेगा। भारतीय संस्कृति जब जब अपने साथ समूल रूप में खड़ी होती है, वैश्विक स्तर पर उसको मान्यता मिलती है। और कोरोना काल में पूरे देश ने देखा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को किस तरह से मान और सम्मान मिला। मैं जब बात उसकी कर रहा था, आकाश जी अभी आप खड़े नहीं होइएगा थोड़ी देर। ये वी शांताराम ने एक फिल्म बनाई थी दहेज 1950 में। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि बिहार का दहेज उन्मूलन कानून जब लागू हुआ तो वो फिल्म उसके पीछे थी। ये प्रभाव है फिल्मों का, ये प्रभाव है फिल्मों का कि बाप जब पूरी संपत्ति बेचकर बेटी को दहेज देने के लिए खड़ा होता है और उस फिल्म में बेटी उनकी गोद में मर जाती है जमींदार साहब के, तो कहती है बिटिया मैंने तो तुम्हारे लिए सारा सब कुछ बेच के आज तुम्हें सौंपने आया हूँ। तो कहती है बाबूजी दहेज नहीं चाहिए। ये फिल्म। और गांधी जी के बारे में फिल्म पर जब बात हो तो गांधी जी के बारे में थोड़ा कम ही बात करनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने आज तक कोई फिल्म देखी नहीं थी। राम राज्य वाला भी झूठा प्रचार है, वो देखी नहीं थी। उनको फिल्मों से नफरत थी। और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब का पत्र पढ़ लेने के बाद वो नफरत स्पष्ट हो जाती है। वो उनकी अपनी उस समय की मांग थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गांधी जी की आलोचना इस वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि वो समय की मांग थी। उनको लगता था कि पारसी थिएटर के प्रभाव में जो लोग लड़के फिल्म देखकर, और जब थिएटर के तंबू उखड़ते थे तो गांव के गांव लड़के गायब हो जाते थे। थिएटर के जो महिलाएं अदाकारा होती थी उनके इश्क में गिरफ्तार होकर गांव का गांव खाली हो जाता था। तो गांधी जी को लगता था कि यह फिल्म बहुत बुरी चीज़ है। और जब ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने जो पत्र लिखा है, उनको बहुत लंबा पत्र है, उसको हर सिनेमा के विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जब सही जगह पर सही व्यक्ति की हम बात करते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि आज हम 2022 में ये बात क्यों कर रहे हैं। ये तो स्वाधीनता के बाद, मतलब विडंबना देखिए कि स्वाधीनता के 75 साल बाद जब हम अमृत काल में हैं, तब हम ये बात कर रहे हैं कि सही समय पर सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाए। क्या हुआ? एनएफडीसी जैसी संस्थाओं ने एक विचारधारा विशेष की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए धन दिया। मैं खुलेआम मंच से कहता हूं। और वो फिल्मों की सूची देख लीजिए। अपने गढ़े हुए नायक, अपने गढ़े हुए अभिनेता, अपने गढ़े हुए निर्माता, पैसा सरकार का। प्रोड्यूसर को कोई चिंता ही नहीं रहती थी कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि पैसे तो पहले आ गए। तो अब जब इन चीजों को सुधारने का प्रयास शुरू हुआ है तो थोड़ी तकलीफ तो होगी, ज्यादा भी हो सकती है। अब मैं समाप्त करूंगा अपनी बात। कश्मीर पे बहुत फिल्म बनी है ना, और इस तरह मतलब आतंकवाद और आतंकवादियों को लेकर एक संवेदना का वातावरण बनाने का प्रयास खास तौर पर हिंदी फिल्मों ने किया। ओह, बड़ा तकलीफ हुआ। अभी मैं मिशन कश्मीर देख रहा था फ्लाइट में लौटते समय। अल्ताफ इसलिए आतंकवादी बन गया कि एक क्रॉस फायरिंग में उसके माँ बाप मारे गए। पूरी फिल्म इसको जस्टिफाई करती है। इस बात को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि खान जिसका बेटा छत से गिर के मर गया और एक आतंकवादी के फतवे की वजह से पूरा कश्मीर के किसी हॉस्पिटल में उसको इलाज नहीं मिलता और वो बच्चा मर जाता है, उसको बस एक ऐसे ही दिखा दिया गया। लेकिन अल्ताफ आतंकवादी क्यों बना, इसको इतना महिमा मैं हूं ना कर आखिरी 6 मिनट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारी सिनेमा की स्थिति क्या है और इस आइडिया ऑफ इंडिया को कितना कुठाराघात एक विचारधारा विशेष और दौर विशेष के फिल्मों ने पहुंचाया। उसको देखे जाने की आवश्यकता है और उस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। गुलजार साहब जैसे बड़े फिल्मकार, बहुत हिम्मत के साथ कहना पड़ता है ये बात को और बहुत सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि गुलजार साहब माचिस में क्या कहते हैं डायलॉग में, आतंकवादी खेत में पैदा नहीं होते,
और अगर आप समग्रता में उन संवादों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आतंक, जैसे किसी जमाने में डकैत दिखाया जाते थे हमारे यहाँ, चंबल के डकैत, कि डकैत इस वजह से बन जाते हैं कि उसके साथ किसी जमींदार ने अत्याचार किया, तो आतंकवादी भी वैसे ही बने इंडिया में। आम तो मतलब फिल्मों में तो कम से कम वैसे ही बने, किसी मजहब के आधार पर नहीं बने, किसी धर्म के आधार पर नहीं बने। भारतीय फिल्में अगर कोई विदेश में देखेगा तो यही होगी। और अंतिम बात मैं अपनी कह के समाप्त करूंगा। विवेक अग्निहोत्री की एक फिल्म आई द कश्मीर फाइल्स, वैकल्पिक नरेशन को लेते हुए सामने आई। बहुत बहुत अच्छा उदाहरण है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाया गया। वैश्विक स्तर पर ये भ्रम बनाने की कोशिश की गई कि कश्मीर के निवासियों को, अच्छा हाँ, कश्मीर पर बनी हुई सारी फिल्मों के हमारे भारतीय डायलॉग राइटर कश्मीर और भारतीय लिखते रहे हैं। इस पर भी गौर करिएगा, ये मैं लिख के लाया था, भूल रहा था बोलना। मतलब भारत, वहाँ का हमारा भारत का संवाद लेखक कश्मीर को अलग बोल रहा है और भारत को अलग बोल रहा है। वो हिंदुस्तानी ऐसा करते हैं, वो हिंदुस्तानी ऐसा करते हैं, ये कश्मीरी हैं, वो हिंदुस्तानी है। किसी फिल्म में ये नहीं कहा कि कश्मीर भी हिंदुस्तानी है। कहाँ? तब किसी ने क्यों नहीं आवाज उठाई? तब हमारे बड़े बड़े लेख क्यों नहीं लिखे गए? तब पुस्तकें क्यों नहीं प्रकाशित हुई? कहाँ थे हम? अमृत काल में ये सारी बातें अब खुल के सामने आ रही हैं। द कश्मीर फाइल्स ने एक इतना बड़ा प्रभाव छोड़ा है कि जो वैश्विक स्तर पर एक नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, एक वैकल्पिक नरेशन भी पूरी दुनिया के सामने एक फिल्म के माध्यम से आया है। और आज अकारण नहीं है कि इजराइल में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, तमाम दुनिया के देशों में उस फिल्मों का प्रदर्शन स्वतः स्फूर्त तरीके से हो रहा है। मैं शब्दों के चयन में बहुत सावधान रहता हूं, इसलिए स्वतः स्फूर्त को अंडरलाइन करता हूं कि इस तरह से फिल्में अपना प्रभाव छोड़ती हैं। तो भारत सरकार को जो दिक्कतें हो सकती थीं कश्मीर को लेकर, 370 को विड्रॉ करने को लेकर, और जो हमारे कुछ पत्रकार, बुकर प्राप्त पत्रकार और लेखक हैं जो कश्मीर को कॉन्फ्लिक्ट जोन और कॉन्फ्लिक्ट एरिया लिख के आगे बढ़ाते रहे, उनसे, उनके माध्यम से जो भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हो सकती थी, फिल्मों ने उसको रोकने का काम किया है। इसलिए आज़ादी के अमृतकाल में, और मैं आईसीसीआर और फ्लेम यूनिवर्सिटी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा रखी। और एक अनुरोध भी करता हूं, चूंकि चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, चेयरपर्सन साहब, कि इसके डेलिबरेशंस को अगर एक पुस्तिका के रूप में छापकर पूरे देश के लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए तो बहुत लाभदायक होगा और उसका बहुत उपयोगी भी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद विजय जी। मुझे आज की इस चर्चा से नैमिषारण्य की याद आ गई। हम में से कुछ लोग शायद नैमिषारण्य के बारे में कुछ पुराणों में पढ़े होंगे, ग्रंथों में पढ़े होंगे। हमारे यहाँ भारत में आदिकाल से इसकी एक परंपरा रही है। नैमिषारण्य, वहाँ पे ऋषि मुनि इकट्ठे होते थे, उस समय के जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो इकट्ठे होते थे और उस पर मंथन होता था और उसके आधार पे कुछ कथाएं लिखी जाती थी, कुछ संकलन होता था कि समाज को और विश्व को क्या चाहिए करके। मुझे लगता है आज जो इस तरह की यहाँ पे चर्चा हो रही है, इससे बहुत कुछ मिलेगा हमारे सिनेमा को, हमारे भारतीयता को, और जो किस तरह से ये जो व्हीकल बन सकता है। मुझे लगता है जैसे आज मैं अगर सोचता हूँ कि हमारे जो अगर चाइना में, जापान में अगर जातक कथाएँ प्रचलित है, वो बुद्ध के माध्यम से गई, बुद्ध के दर्शन के माध्यम से गया। उसी तरह जो रामायण महाभारत है, एक वेद व्यास और वाल्मीकि जी के कारण कितना उसका प्रभाव पड़ा है। तो मुझे लगता है इस तरह की चर्चाओं का बहुत लाभ होगा। आप में से किसी का कुछ प्रश्न है तो आप, हाँ, क्या बात है। या मैम, यू कैन आफ्टर क्वेश्चंस यू कैन सम अप, है ना? जी जी सर, हाँ जी सर। माइक है, माइक। Namaskar, good afternoon to the elite panel. I am Ajay Purkar. I am predominantly a Marathi actor from the theatre, films and the television as well. One particular important point, since we have
The national award is also here, Padma Puraskar award is also here in the panel. One particular question, pardon me if I'm making a very bold statement here, but is it so important that a particular film from India has to have an Oscar? Because we are rich in our content, we are rich in our films, we are rich in our culture, we are making films on different subjects. And as rightly put up by one of the panelists, that every 100 kilometers the color changes, the color of clothes changes, bhasha changes, food changes. So this is one thing that I wanted to put across, that if my country gives a pat on my back for my work, that would be the ultimate award for me in this country. So I don't need an Oscar if I'm doing a great job in my film. And secondly, I would also... yes, please, ma'am. See, we don't need a pat on the back from the American Academy, right? वो मैंने कहा कि we don't need a pat on our back, we don't want their endorsement. But the point is, Oscar films are seen worldwide. लोग देखते हैं उनको, वेट करते हैं, और हम भी, हमारे ऑस्कर लिस्ट है, हम भी देखते हैं, सारे लोग देखते हैं उसमें क्या अच्छा था. See, the thing is, we want to appreciate, see what is good. कहीं से भी हम कुछ भी उठा सकते हैं ना, what is good. So you want to develop your understanding of cinema, language of cinema. So that is for any interested person as a filmmaker will watch more cinema, good cinema, not just Oscar, but even also the Cannes Festival selection we watch. We watch all these films. Why? Because some jury has sat and said these are good films. So we want to watch good films, not that we want an Oscar or pat on the back. But the real reason is we want to watch good cinema, so we can grow. हाँ, कुलदीप सिन्हा सर, हाँ जी, माइक प्लीज, कोई उनको पास करेंगे कुलदीप सिन्हा जी को. मैं कुलदीप सिन्हा. आई एम ए फिल्म मेकर, ऑथर, एंड आई वाज डीजी इन फिल्म्स डिवीजन. आई एम आल्सो फ्रॉम फिल्म इंस्टीट्यूट. मेरा प्रश्न अरुणा जी और अशोक राणे जी से है. सुभाष घई जी ने भी उस संदर्भ में बात की थी कि हमारी फिल्मों को सरकारी सपोर्ट मिलना चाहिए अगर हमें इंडियननेस को प्रमोट करना है. एनएफडीसी का जो बेसिक पर्पस था वो यही था, जिसके अच्छी फिल्में बनाई जाएं. और एनएफडीसी पिछले 50 साल से काफ़ी अच्छी फिल्में, पहले वो एफएफसी होता था, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, सिर्फ फाइनेंस होता था, बाद में प्रोडक्शन हो गया. हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों की नज़र में फिल्म डिवीज़न कहाँ फेल हुई और गवर्नमेंट कहाँ उसको सुधार नहीं पाई. एक पहली बात तो थोड़ा सा मैं उनको भी जवाब देना चाहूँगा. ऑस्कर, मैं मेरे क्लास में मेरे लेक्चर में पूछते कि सर हमको ऑस्कर कब मिलेगा. मतलब क्यों चाहिए तुमको ऑस्कर, इतना कुछ हमारे पास है, ऑस्कर से क्या होने वाला है. ऑस्कर कुछ नहीं, लेकिन जैसे अरुणा जी ने कहा कि एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है. जैसे अभी आपको एक रियलिटी बता दूँ, इन इंडियन सिनेमा, बंगाली, मराठी, गुजराती, सब में आप जाके पूछिए, आज 10-15 साल से लोगों को नेशनल अवार्ड पता चला है. उसके पहले किसी को वो भी पता नहीं है. लोग फिल्म फेयर कब मिलेगा पूछते थे, क्योंकि उसका पॉपुलैरिटी है ना, फिल्म फेयर की अवार्ड की जो पॉपुलैरिटी है वो नेशनल अवार्ड को नहीं थी. और आजकल नेशनल अवार्ड का इसलिए है कि अभी वहाँ कुछ होता है दिल्ली में, सब जगह लाइव दिखता है, फिर और सोशल मीडिया में आता है, एवरीबडी कम्स टू नो. तो वो एक वजह है. और जैसे आपने फिल्म डिवीजन की बात की, एनएफडीसी का, जैसे और एक मैं थोड़ा सा, आई विल टेक दिस लिबर्टी विथ योर परमिशन. मैं आई डोंट वांट टू जवाब नहीं दे रहा. आपने थोड़ा बोला तो गलतफहमी ऐसी है. मैंने बोला था कि हमको ऑस्कर कभी नहीं मिलेगा. इसकी वजह ये नहीं कि वो लोग के बारे में, उनके जूरी के, हमारे जूरी के बारे में मैंने कहा. हमारे जो जूरी फिल्म सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में मैंने कहा था कि हाँ गलत लोग हैं उसके बारे में. और जो मैंने गलत, राइट पीपल, रॉन्ग पीपल, मैंने बोला ना कि वो अब के बारे में पहले से बोल रहा हूँ. जो एनएफडीसी क्यों फेल हो गई, एनएफडीसी फेल क्यों हुई, बिकॉज ऑफ गलत पीपल. एनएफडीसी तो पहले से फेल हो चुकी थी. कितने सारे फिल्म्स डिवीजन में, अभी मैं आई वॉज इन बर्लिन, आई गो टू, मैंने बोला कि वहाँ के जो कॉन्सल जनरल को, इंडियन एम्बेसी में जाके मैंने बोला कि आपके देश में फिल्म्स डिवीजन इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाते, आप क्यों नहीं दिखाते. मैं मुंबई में बैठकर मैक्समोर में जाता हूँ, अलायंस फ्रांस में जाता हूँ, यूसिस में जाता हूँ, एंड आई सी देयर फिल्म. व्हाई डोंट यू वी टेक आवर फिल्म थ्रू आवर एम्बेसीज. कितनी सारी एम्बेसीज देशों में हैं, क्यों नहीं हम लेके जाते. हमारे यहाँ फिल्म्स डिवीजन का जो ट्रेजर है
व्हाट अ ट्रेजर। मैंने 3 दिन मुंबई के रविनाट्य मंदिर में 3 दिन मैंने अकेले में, वो तभी 35 और 16 की फिल्में थी, डिजिटल नहीं था, मैंने जाके वो गोडाउन से फिल्में निकाल कर 3 दिन मैंने शो किया था। एंड पीपल क्लैप मी फॉर दैट, अरे बहुत बड़ा काम तुमने किया, क्योंकि लोगों ने देखा ही नहीं था फिल्में हमारे यहाँ, फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड। हमने क्या किया हमारे लिए, हमने बताया नहीं। और जैसे हमारा मीडिया किया, जैसे मैंने बोल रहा ना, जैसे हमारे मैंने एक सिस्टम बनाना चाहिए। हमारा मीडिया जिसका मैं पार्ट हूँ, अभी हमारे एडिटर क्या बोलते हैं, मैं जाता हूँ कान में जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, अशोक राणे 600 वर्ड में आर्टिकल लिखना। अगर मैं आई एम वॉचिंग फिल्म्स इन कान, बेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा, एंड दे वांट मी टू राइट आर्टिकल 600 वर्ड, तो मैंने बोला ठीक है, कान फिल्म फेस्टिवल, अशोक राणे 600 वर्ड हो गए, बस खत्म बात, क्या लिखना क्या होगा। जी। और तो ये सब जगह पे यही सारे प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। वी टू एजुकेट अवर ओन पीपल, वी टू एजुकेट अवर सिस्टम। जी, और प्रश्न, अच्छा प्रश्न थोड़ा संक्षिप्त रखिएगा, शॉर्ट में। जी जी, मिलिंद जी शायद, मिलिंद नहीं, अच्छा जी, हाँ सॉरी। Hello, my name is Omkar Dabharkar. I'm a digital content creator. My question to Rane sir, or if any other dignitary wants to answer, is we are talking about strengthening the idea of India throughout the world. We are talking about propagating the idea to the world, idea of India to the world. My question is, are Indian movie producers willing to go through the grill of understanding the idea of the world in the first place? Because historical movies, we see that directors don't know what facts they're talking about. तानाजी मूवी का प्रमोशन चल रहा है, एक्टर को एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो जो बोल रहा है वो हिस्ट्री से मैच नहीं होता है. So at times it feels that it's an honest mistake that they don't know what India is. Are they willing to go through the grill first to know idea of India and then probably create something around it? कोई आनंद विजय जी, आप या मैम? देखिए, आइडिया ऑफ इंडिया पे मैंने बहुत बोला। आइडिया ऑफ इंडिया यही है और उसी को प्रोपोगेट करना चाहिए। आज किसी भी यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनने की जरूरत नहीं है, किसी महज जवीन को मीना कुमारी बनने की जरूरत नहीं है। वो शाहरुख खान के नाम से सुपरस्टार बन सकता है और हमारे तमाम पैनलिस्ट ने कहा कि बहुत विदेशों में भी लोकप्रिय है। यही आइडिया ऑफ इंडिया है, इसी को लोकप्रिय करना है और इसकी जर्नी बहुत लंबी रही है। कोई शाहरुख खान को अब नाम बदलने की जरूरत नहीं है, जैसा दिलीप कुमार साहब को या मीना कुमारी को या मधुबाला को करना पड़ा था। तो ये आइडिया ऑफ इंडिया है और इसी को एक मिनट, लेट मी फिनिश माय फ्रेंड, इसी को हमारे फिल्मकारों को भी समझने की आवश्यकता है। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं ना, बेसिक फ्लॉ उनके अंदर है, उनको समझ ही नहीं है भारतीयता की। उनको सिफॉन साड़ी में हीरोइन को उड़ाकर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना ही, और जिस तरह से सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी दिखाते हैं, उन्हें संस्कृत साहित्य पढ़ा ही नहीं है। वो तो जेम्स हेडली चेज पढ़ के सीख रहे हैं कि कैसे रोमांस किया जाता है। अरे भैया, कालिदास पढ़ लो ना, रोमांस की पराकाष्ठा है वहां। तो क्या आप, मैं नाम लेके कहूं कि आपके फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का कि उनको कालिदास के नाम का भी नहीं पता होगा? तो उनको आइडिया ऑफ इंडिया का पता ही नहीं, इसलिए उनसे एक्सपेक्टेशन ही बेकार है। सुभाष छेड़ा जी। नमस्कार, मेरा सवाल नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू ऐड अ फ्यू पॉइंट्स। सर एक मिनट, सवाल खत्म होने दीजिए फिर ऐड कर दीजिएगा। और कोई सवाल है? सर, इंडिया हैज गॉट अ रिच हिस्ट्री, तो हम लोग का फोकस हिस्ट्री दिखाने में होना चाहिए कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज, और हिस्ट्री भी कितने दूर वाला हिस्ट्री, पुराने हिस्ट्री की आज़ादी के बाद वाला हिस्ट्री? किससे प्रश्न है आपका मित्र? आप ही कर दो। नीला माधव जी, अगर आप बोल दीजिए। इतिहास तो इतिहास है। इतिहास को आप कालखंड में बांटकर पाठ्य पुस्तकों के हिसाब से उसका वर्गीकरण तो कर सकते हैं, लेकिन किसी फिल्म निर्माता को ये नहीं कह सकते कि आप सम्राट अशोक पे फिल्म मत बनाइए, आप अकबर पे फिल्म मत बनाइए। इस दुनिया में 3 ग्रेट हुए हैं, अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट एंड सिकंदर द ग्रेट, है ना? तो इतिहास को जाने दीजिए। और इतिहास, फिर आप ऐसे बर्रे के छत्ते में हाथ डलवाने की कोशिश कर रहे हैं मुझसे। एक इतिहास एल बैशम ने भी लिखा, जो स्नेक चार्मर्स और सपेरों का और उसका देश बताता है, वो भी इतिहास ही है। और यूपीएससी के हमारे जमाने तक तो कम से कम यूपीएससी में एल बैशम को पढ़ के ही परीक्षा देते थे हम लोग। तो इतिहास, अब हम अपने स्क्रिप्चर्स पे भरोसा करें ना करें, ये हमें वही सिखाया गया है कि वो तो काल्पनिक बातें थी। तो कौन से इतिहास को क्या दिखाएंगे? अगर आप भारतीयता के प्रमोशन की बात करते हैं, इंडियननेस को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो आपको अब क्या हुआ कि हमारे पौराणिक पात्रों को मिथक बता दिया गया,
डीडी कौशाम्बी साहब एक इतिहासकार हुए, उन्होंने मिथ एंड रियलिटी नाम की एक पुस्तक ही लिख दी। तो अब हमारे राम को भी मतलब हमारे जीवन काल में ही हमने देखा है कि हमारी ही सरकार ने राम को काल्पनिक चरित्र बताकर अदालत को कह दिया। तो इस तरह से इतिहास को देखने की एक दृष्टि है। आप किसी काल में जाइए, लेकिन जो दृष्टि होनी चाहिए वो भारतीय होनी चाहिए। मैं सिर्फ इस बात का सत्याग्रही हूं, दुराग्रही बिल्कुल नहीं हूं। जी, सुभाष खेड़ा जी। नमस्कार। मेरा सवाल नहीं है, मैं जिन पैनलिस्ट ने बोला था, बस थोड़ा शॉर्ट में बोलिएगा क्योंकि उसके बाद हमें सब 2 मिनट हमें भी दे दीजिए जी सर सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये रूपा जी ने बताया कि हमें स्वामी विवेकानंद के ऊपर फिल्म बननी चाहिए, उपनिषद पे फिल्में बननी चाहिए, राइट्स। जीवी अय्यर साहब की अगर आप फिल्में देखिए तो आदि शंकराचार्य फर्स्ट संस्कृत फिल्म स्वामी विवेकानंद बना चुके हैं। हमें ऐसी बहुत फिल्में बना चुके हैं, बट हमारा प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट बीन एबल टू डिस्ट्रीब्यूट टू द राइट ऑडियंस एंड टू द राइट पीपल, मतलब पहुंच नहीं पाते हैं। दूसरी बात कही, शायद आपने डेटाबेस ऑन इंडियन सिनेमा, रूपा जी, कि हमारा डेटाबेस, इस देश में डेटाबेस ऑन इंडियन सिनेमा हैज़ ऑलरेडी इन प्लेस फ्रॉम 1912 till today. At a press of a button, you can get information on anything, whether editor Subhash Sehgal or an actor, anything, any technicians. Second thing, सवेरे से चर्चा हो रही है गांधी के ऊपर। We always talk about गांधी of Attenborough. हमारे देश में भी गांधी की ओरिजिनल जो फिल्म बनी है, इसका नाम है महात्मा, मेड बाय विठल भाई जवेरी। आई थिंक कुलदीप यहाँ बैठे हुए हैं और प्रकाश मखदूम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे आर्काइव में 27 रेल की 5 घंटे की बनी हुई फिल्म महात्मा बनी है, कितने को पता है? ओनली इज अ लेक ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली आई से। एंड ये फिल्म महात्मा हमारी कॉपी हुई है, कॉपी कराने वाले भी हमारे दोस्त हैं, हाँ, सब जानते हैं इसको। सेकंड थिंग, ये मतलब आई जस्ट वांटेड टू करेक्ट, अभी जो बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि ऑस्कर की। सर जी, ऑस्कर हमारे लिए नहीं है, हम क्यों चर्चा करें इसके ऊपर? वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल अवार्ड्स। ऑस्कर के लिए हमारी एंट्री सिर्फ एक फॉरेन फिल्म कैटेगरी में होती है। आज गांधी को क्यों ऑस्कर मिला? इट इज़ नॉट एन इंडियन फिल्म, इट्स एन फॉरेन फिल्म। आई जस्ट वांट टू करेक्ट, ये सवाल गलत लोगों का या सही लोगों का नहीं है। सर जी, ऑस्कर हमारे लिए नहीं है। अगर फॉरेन फिल्म के कैटेगरी में हमारी फिल्म सिलेक्ट होती है, अगर वो पहुंचती है तो ठीक है, बट ऑस्कर ये ड्रीम देखना भी नहीं चाहिए हमें। दूसरा है कि हमें फिल्म पहुंचाने में लिए नॉट ओनली फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत तो 1952 से हुई है, बट एक फिल्म सोसाइटी मूवमेंट शुरू हुई ऑल ओवर इंडिया में, इसका इतना बहुत योगदान रहा। और इसके अलावा हमारे पास 16mm मूवमेंट थी। हाँ, बट आई एम सेइंग दैट कि द फिल्म सोसाइटी हैज़ टू बी एक्नॉलेज्ड। और उसके पहले एक 16mm फिल्म की मूवमेंट थी। उसका एक लास्ट का एक उदाहरण देता हूँ। जब अमर अकबर एंथनी फिल्म यहाँ पे इतनी चल रही थी, गांव तक नहीं पहुँच रही थी, वो 3 घंटे की लंबी फिल्म है। हम डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल में 16mm वाला आदमी उसको नहीं ले सकता है, तो उसने क्या अमर अकबर एंथनी की ब्लैक एंड वाइट 16mm में ला के वो गाँव में दिखाई जाती थी। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है। और आई थिंक अरुणा जी ने बताया कि हमारे पास इतनी फिल्में बनती है, बट हमारा कलेक्शन इतना नहीं जाता है। आई डोंट एग्री विद दैट। We have the largest audience in this country. We make a film in 60 languages. We were having a once upon a time 12,000 cinema houses in the country. Problem ये होता है कि हमारी फिल्म में जितना एक अमेरिकन फिल्म का कलेक्शन होता है, एक तेलुगु फिल्म का कलेक्शन होता है। हमारे पास कलेक्शन सब हिंदी फिल्मों का दिखाया जाता है। हम कितनी तेलुगु फिल्म का कलेक्शन दिखाते हैं? अभी कुछ बाहुबली आई, उसके बाद से हम 100 करोड़ 500 करोड़ की बात करती है। नेवर टॉक्स कलेक्शन इन टर्म्स अबाउट द रेवेन्यू। वी ऑलवेज मस्ट टॉक रीच ऑफ द फिल्म, नॉट द ऑडियंस इज द रिच। आई थिंक आई एम डन। नहीं, एक आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि हमारे मंच बताना हाँ, एक चीज़ बताना चाहती थी। आपके ना कमेंट्स बहुत लंबे हैं, उसके सब के जवाब देने लगेंगे तो बहुत मुश्किल है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का गड़बड़ है। जिसके पास पैसा है वही कंट्रोल करते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि एक कॉर्पस बनाए जाए और सरकार के जो खर्चे होते हैं उसको सिस्टमेटिक वे से है।
आपने जो कहा है कि आज के तारीख में भारत में सबके बारे में डिटेल है, सबके बारे में डिटेल नहीं है। विकिपीडिया में जाके मेरे बारे में आपको गलत डिटेल मिलेगा, मैं खुद बोल रही हूँ। तो सबके बारे में सही डिटेल नहीं है, और मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑल ओवर फ्रॉम द फ्रेटर्निटी। क्योंकि पूरे आज तक क्या हो गया, भारत के फिल्म बहुत सालों से ये तोड़ने की कोशिश हो रही है। बहुत सालों से क्या होता था, सिर्फ मतलब बॉम्बे का हिंदी फिल्म ही हम भारत के फिल्म हुआ करते थे। धीरे धीरे जब पैरेलल सिनेमाज, जिसको नाम बदलते गए, हम सीरियस मूवी ये वो, हम उसी के पार्ट थे। हम बॉम्बे फिल्म्स के पार्ट नहीं थे, हम पैरेलल मूवीज के पार्ट थे। अब आपने एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण किया, फिल्म डिवीजन कहाँ गलत हो गए, एनएफडीसी कहाँ गलत हो गए। मैं बताती हूँ कहाँ गलत हो गए। एकदम बिल्कुल सही कहा कि पैसा सरकार से आता था। अब ऐसे ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को 4-4 साल के बाद, डायरेक्टर को 4-4 साल के बाद एक फिल्म मिलती थी। मुझे याद है युगांत करते वक्त एक वक्त रीना दी रोने लग गए। रीना दी ने बोला अभी पैसा ही नहीं है, खत्म कैसे करेंगी, आउटडोर की शूटिंग खत्म करके जाएंगे कैसे। युगांत की बात कर रही हूँ। मैंने बोला आप मेरा जो रेम्यूनरेशन आपने पकड़ा था उसको कैंसिल कर दीजिए, थोड़ा सा आगे 2-4 दिन हो जाएगा। पैसों की तंगी थी। अभी आज के तारीख में भी देखिए, पश्चिम बंगाल में एक एक करके जो फिल्म थिएटर्स हैं वो तोड़े जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, और उसके मतलब नए मल्टीप्लेक्सेस, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं। सो मैं इसीलिए बोल रही थी कंसोलिडेट करें, क्योंकि अलग अलग राज्य के अलग अलग रूल है, अलग अलग राज्य अलग अलग फैसिलिटी देता है, अलग अलग राज्य में अलग अलग पॉलिसीज है। तो एक पॉलिसी बनाना ज़रूरी है, और कहाँ किसकी कैसी हालत है उसके, इंडस्ट्री को बचाना इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है, सरकार सिर्फ मदद कर सकती है। तो एक कंसोलिडेटेड वे से अगर जाएगा, कोई भी संसाधन जाएगा। अगर यही फिल्म एनएफडीसी के सारे फिल्म अगर पीपीपी मॉडल में उस वक्त होने का आइडिया होता, मैं भी 20 रुपया लगाऊंगी, एनएफडीसी भी 20 रुपया देंगे, तो मैं जो 20 रुपया लगाऊंगी उसको उठाने के लिए मैं भी तो भाग दौड़ करूंगी अलग अलग स्टूडियो में, अलग अलग थिएटर्स में। मेरा तो पैसा आ गया, सरकार ने तो दे दिया, इसीलिए मुझे बाकी 20 का तो जिम्मेदारी नहीं है। तो उसका वसूलने का बाकी जो लोग थे उसके पास वो था भी नहीं। तो वो एक ज़रूरी था, हम फिल्म बना पाए वही बहुत था। उसके बाद फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का सचमुच सारा प्रॉब्लम फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का है, आज भी है। इसीलिए करोड़ों के बजट्स के फिल्म और उसके करोड़ों बनने का जो एक ग्रैंडर दिखाने का तरीका है, गड़बड़ उसमें भी है। ये हमारा माइंडसेट का इशू है। हम कितने करोड़ों के प्रोजेक्ट और कितने बड़े बैनर्स और कितने बड़े पोस्टर्स देख के ही हम फिल्म जाने के लिए सोचते हैं। तो ये माइंडसेट बदलने का पूरा गेम एक बहुत प्लानिंग तरीके से करना पड़ेगा। किसी को दोष गुण ये सब छोड़ के अभी आगे बढ़ने का समय है। इतना सारा समस्या का समाधान हो गया आज देश में, ये भी हो जाएगा, चिंता मत करिए। जी बहुत बहुत ये धन्यवाद। मुझे लगता है एक मिनट, हाँ एक सवाल नहीं, सवाल अभी हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमें अगला सत्र फिर लेट हो जाएगा। तो ऐसा है कि देखिए, मैं जानता हूँ हम सब फिल्म मेकर है, सब विद्वान है, बहुत कुछ सुनना है आप लोगों से भी, लेकिन अगर कुछ सुझाव है आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे युगांक जी है फिल्म से और आईसीसीआर, मैं दोनों से निवेदन करूँगा कि इस तरह के सत्र बहुत जल्दी करें ताकि हम लोग आगे भी और कुछ इस तरह की चर्चाएं हो सके। मैं अब सुमिति जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे आज के चेयर अरुणा जी को शी विल इनवाइट यू, या शी विल से सुमिति जी, या सुमिति जी आइए प्लीज, एंड शी विल सम अप आल्सो।
जी अरुणा जी, इफ़ यू कैन कम एंड सम अप द सेशन इन 5 मिनट्स बिकॉज वी आर, थोड़ा समय की कमी है, बाकी या प्लीज, थैंक यू। First of all, I'm very, very thankful that we had this discussion and we had this seminar. So I have to thank Vinay sir, Uday ji, thank you, and thank you ICCR, thank you Flame, thank you everyone who had created this seminar. And this was very important. It was high time we discussed these issues. And of course, my panelists who are absolutely hitting the nail on the head, thank you for everything. And I'm just going to sum up quickly the few things we said. First of all, I think we should start from the root idea itself, which Vijay said, that idea of India. You know, unless you feel as an Indian something, you're not going to really bring it up in your film, or you don't even have to show and talk about it. Film cinema is about show, don't tell. And it will automatically what you're thinking, because film is a very transparent medium. Whatever there is, it will show through. So if you believe you're proud about your Indian heritage, it will come through. So the point here then we have to make is, how do you inculcate that in the growing youngsters? As I said, see, my father was a freedom fighter. He was a Gandhian. He never saw a film in his life, but I became a filmmaker. So whatever. Point is, but the youngsters didn't even know who Gandhi is at a particular point of time. It was so horrifying and shocking. The thing is, how do we inculcate pride in our youngsters? And I think you have to start early, school level, college level, have enough discussions about India. What do it be? And the second thing is, I would say, also the kind of films we make. Our regional literature, I promise you, is so rich, and yet we seem so bankrupt when we make our Bollywood films, as if there are no ideas forthcoming. So, you know, encourage people to look into literature and find the literature, find the stories, because every person in this country has so many stories. Now, coming to one of the very, very important points was promotion of films and distribution of films. See, NFDC was created, but they made the films. Where do these films go? There was no place to show. Only Doordarshan would show from time to time, once a week or something like that. There was no, they never planned that. इसके आगे क्या होगा? पिक्चरें तो बना लिया, छोटे बड़े सारे अच्छे अच्छे फिल्में बना लिया, बट दिखाएंगे कहाँ? बाद में थोड़े सैटेलाइट पे गए, but distribution is very, very important. Theaters or otherwise, but important. I think also we've lost that film society movement. I would say I think if every college had a film society, every city had a film society. In fact, we just started a little film school. I mean, you know, we started. And we wanted to have a film club, but no support, really no support. So the film society movement should again be, because that will give a lot of opportunity for discussion, generation of ideas, and people sharing work. Then ICCR, when it comes to ICCR, there was a time when ICCR used to have a lot of festivals, Celebrate India or Incredible India or something like that. So I feel that's another point where our films can be showcased, our filmmakers can be, you know, invited, and actually have many, many festivals abroad. The embassies are there, they can show our films. Because embassies are there, consulates are there, they can very well show our films. See, what happens in India, we go to an Alliance Francaise, they're showing some film. We go to the American, the US consulate and see some, because they invite us. How come our consulates and embassies inviting the local people from the different countries? I don't know. So that is another thing I feel we need to do. And I think also MIF is another festival which happens once in 2 years. I would also recommend that MIF happens every year. Now that is something, again, that will help cinema a lot. And and basically, I think we must not end with this. This is a starting point. And let's sit down, have more meetings, conferences, sit down, put the points, and create the path ahead. And that's what I would request. Thank you very much. And really happy to be here and grateful for all of us. We're very happy to be part of this. Thank you. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और जो जैसे कि हमने चर्चा की कि हमारी भारतीय संस्कृति और
सिनेमा तो एक संस्कृति का अंग है, मैं मानता हूँ, आप सब भी सहमत होंगे। और ये जिस तरह से एक समय सुदूर पूरे विश्व में हमारी संस्कृति हमारे साहित्य के माध्यम से फैला था, चातक कथाएं हो चाहे पंचतंत्र की कथाएं हो, मुझे लगता है जिस तरह हमारी सिनेमा काम तो कर रही है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है हम और प्रभावशाली होंगे। और आज की इस चर्चा में काफ़ी कुछ वो बातें निकल के आई है। तो पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक टी ब्रेक लेंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे। और कल भी हमारा सत्र रहेगा, बहुत सारे प्रश्न हैं, वह आप कल हमसे पूछ सकते, हमसे मतलब हमारे स्पीकर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। 10 मिनट में हम लोग मिलते हैं।